Welcome back, everyone. First session was on RERA, which you all had, and second session is on MSME incentives package. A lot of incentives are given by the state, various state and central governments to MSME. They are promoting MSME and how to raise the fund for MSME. For that, we have the expert CA Sachin Tulsianji, and without wasting time, I'll request Manishji to please introduce today's speaker, Sachin Tulsianji. Thank you. Thank you, Manishji. Today's topic, government subsidy and incentive. It's another opportunity which JB Nagar Study Circle has arranged for our members to enlighten how and what we can do. And we have none other than Sachin Tulsianji to guide us on this topic. A founder member of Basel Corporation Advisor, more than 1.5 decade experience in this field of subsidy incentives relating to MSME, corporate finance, government subsidy, corporate advisory, capital market advisory, etc. He is a regular speaker at various study circles, government organizations, and various other business associations. With this short brief, I welcome Sachin to this gathering. Please request you to proud of yours. Now I request CA Kamal Bagheriya and Rajiv Shah to come forward and present a small memento as a love and affection from our study circle. It is Sachin. The floor is yours. Yes, sir. ये वाला ही हो गया क्या विचार हो जाएगा लगेगा Good morning to all. After such a tasty and sweet breakfast, महेश जी ने मेरे को चैलेंज दिया कि हम लोग इतना अच्छा नाश्ता कराते हैं, अब आप सबको जगा के दिखाइए. I take this as a challenge. Let's try. I'll try to keep all you awake for next couple of hours. So आप लोग का साथ I would certainly need. So jokes apart.
Thanks to the JB Nagar Study Circle for giving me opportunity to come in this such a good study circle. पूर्वी जी का मेरे को फोन आया, मैंने कहा इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और अल्मा मैटर के लिए जहाँ से हम लोग ने इंस्टीट्यूट से सब कुछ लिया है, वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, सो जब भी मौका मिलता है वी ऑलवेज ट्राई टू शेयर वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट. So without taking much of time, I think we come to today's topic: unleashing professional opportunities in government subsidies and incentive schemes for MSMEs, including PLI. PLI जो है वो that is not only for MSMEs, it is for large and but हम लोग उसको कवर करेंगे कि पूर्वी जी का भी एक रिक्वेस्ट था कि let's try to cover PLI. Only my request is subsidies कैसे टॉपिक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की itself there are 18 to 20 policies. एक एक पॉलिसी पे हम लोग 2-2 घंटे का सेशन रख सकते हैं. So we cannot cover entire subsidies in a one session, so I'll just try to take MSMEs क्या है, और हम लोग एक सब्सिडी PSI जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पुट करूंगा, और PLI जो है उस पे अगेन देयर आर 14 पॉलिसीज PLI के अंदर, वो भी अपने आप में हर पॉलिसी अपने आप में एक सेपरेट स्कीम है, सो वुड बी डिफिकल्ट बट विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम व्हाटएवर इज पॉसिबल. सो थोड़ा सा मैं आपको फ्लो बता देता हूँ आज के प्रेजेंटेशन का. डेफिनेशन ऑफ MSME हम लोग, सिंस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2006 से लेके 20 तक सेम डेफिनेशन चलती आ रही थी. 2020 ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी टुक एफर्ट्स एंड दे चेंज द डेफिनेशन, तो हम लोग उसको कवर करेंगे. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उद्यम रजिस्ट्रेशन हम लोग को सबको पता है, विल गिव अ पासिंग रेफरेंस ऑन दिस. उसके बाद में बहुत सारे अदर बेनिफिट्स आर आल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट. लास्ट 6-7 साल में उन्होंने काफी काम किया. जेम पोर्टल, ट्रेड्स, MSME समाधान, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 43 भी रिसेंटली सेक्शन H, सब सेक्शन H has been introduced, so you all must be aware of, but that is again a benefit for MSMEs. Then various incentives and subsidies for MSMEs will cover. Production link incentive, fundraising option for MSMEs. Then other opportunities for we chartered accountants की हम लोग और भी साथ में, these are again opportunities for us, जहाँ पे कुछ में अपन को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकते हैं, कुछ में इनडायरेक्ट बेनिफिट्स we can get, but there are some other areas where we can increase our practice. So सबसे पहले MSME जो बज हम लोग ने लास्ट 10 साल में, आई थिंक 10 साल पहले भी MSME हुआ करते थे, पर जो 10 साल में बज क्रिएट हुआ उसका गवर्नमेंट भी डेटा क्रंचिंग काफी करता है और सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुके हैं. सो थोड़ा सा हम लोग इसके डेटा पे जाते हैं कि इतना MSME के बारे में चर्चाएं क्यों हो रही है, व्हाई पीपल आर स्पीकिंग सो मच अबाउट MSMEs. तो मैं आपको थोड़े से कुछ फिगर्स प्रेजेंट करता हूँ इन अ क्विक रिकैप. There are approximately 6.5 crore MSMEs in India, 6.5 crore MSMEs out of a population of 140 crore. अब मैं आपको रिलेट करने के लिए, जर्मनी और फ्रांस की पॉपुलेशन है 6.5 से 7 करोड़, तो जितनी वहां पे पॉपुलेशन है उतने तो यहाँ पे हमारे MSMEs है. जस्ट सी द स्ट्रेंथ, मतलब कहाँ से स्ट्रेंथ आती है, एंड दीज ऑल आर ऑफिशियल डेटा व्हिच हैव बीन टेकन. आउट ऑफ विच अब जो गवर्नमेंट ने पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हुआ करता था उसको कन्वर्ट करके दे हैव मेड इट उद्यम रजिस्ट्रेशन. दे हैव ट्राइड टू मेक इट मोर फॉर्मलाइज, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रॉम लास्ट 10-12 years. सो ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन देयर आर 3.02 करोड़ MSMEs आर रजिस्टर्ड आउट ऑफ 6.5 करोड़, out of which micro are 2.95, which is the major portion, small are 5.79 lakhs and medium are 54,000 MSMEs. Now, again, an important data point. MSME segment contribute 30% of the GDP of India. आज हमारा GDP $3 trillion है, मोटा मोटी 240 लाख करोड़ रुपया, उसमें से 80 लाख करोड़ 75 लाख करोड़ रुपया is being contributed in the GDP by MSMEs. 30% of the GDP is being taken care by MSMEs. In terms of exports, MSMEs are contributing 45% of the exports. हम लोग लार्ज कॉर्पोरेट्स इतने सारे देखते हैं, रिलायंस से लेके टाटा ग्रुप, व्हाटएवर यू नेम, बिरलास, ये वो, पर those are big corporates, large corporates, पर उनके सामने MSMEs are contributing 45% in exports, and out of the total manufacturing output, it is 40% share which MSME holds.
And MSME sector generates direct employment of 15 crore 15 crore direct employment they are generating. ये तो डायरेक्ट का बात करते हैं. अगर हम लोग इसके साथ में आज कोई भी इंडस्ट्री है उसको ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी चाहिए, दोस डजंट कंसीडर इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. तो अगर एक एमएसएमई के साथ में मैं 2 और ऐड कर देता हूं तो आपके 6.5 करोड़ है. अगेन 12 से 13 करोड़ का एडिशनल इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे आर जनरेटिंग. सो दिस इज अ स्ट्रेंथ व्हिच एमएसएमईज आर गिविंग. अब मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, दे आर अगेन पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं. तो उन्होंने देखा ये सब डेटा क्रंचिंग किया. सो आई वुड से ऐसा नहीं है कि खाली यही गवर्नमेंट ने काम किया है. लास्ट गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट आल्सो डिड अ ट्रेमेंडस वर्क टू सपोर्ट एमएसएमईज कि इन लोगों को हम लोग को कुछ देना ही पड़ेगा, बेनिफिट वी हैव टू गिव, अदरवाइज दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अ वोट बैंक फॉर अस. So 2006 के अंदर they created this MSMED Act 2006 came in. उन्होंने काफी सारे provisions for the benefit of MSMEs. उनको बहुत सारे challenges the industry में we'll discuss on the coming slides कि उनके लिए challenges क्या होते हैं और उनको overcome करने के लिए so they created a ministry in 2006, MSMED Act in 2006. 2007 में उन्होंने MSME ministry create किया separately to support उनके लिए जो भी laws लेके आने हैं उनको support करने के लिए. So they created in 2007 मिनिस्ट्री. सब चलता रहा. करंट गवर्नमेंट आया, जब उन्होंने भी अगेन अपना ये सब डेटा क्रंचिंग किया तो उनको लगा ये तो काफी बड़ा अनटैप्ड वोट बैंक है जिसको हम लोग ने टैप नहीं किया. सो नाउ लेट्स वर्क टू गिव सम बेनिफिट्स टू एमएसएमईज. उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, इंडस्ट्री के अंदर अपना ओवरऑल जीडीपी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ाता है. सो दिस गवर्नमेंट अगेन हैज डन ट्रेमेंडस वर्क फॉर एमएसएमई इन लास्ट 8 to 10 years. अगर हम लोग रिज्यूम देखते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स आई है which we'll discuss. Apart from incentive subsidies, they have given a lot of other benefits also. So that is how the things has developed. Or from our ICAI point of view, again I would say 2014 they created a committee for MSMEs also, जो कि आज now it is being headed by Mr. Dheeraj Khandelwal from the Central Council. So again institute को भी लगा कि MSMEs में जो हमारे CA रहते हैं उनके clients, there are a lot of MSMEs, उनको सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है. सो दे क्रिएटेड अ सेपरेट कमिटी फॉर एमएसएमईज इन ICAI आल्सो. सो दैट इज हाउ एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दिस वन सेक्टर. हमारे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. हम लोग काम भी करते हैं. फ्रेंड्स थोड़ा सा आप देखिए अपने क्लाइंट बेस, आप कभी भी उठाएंगे, आप उठा के देखिए 60 to 70% हमारे क्लाइंट्स के अंदर एमएसएमई क्लाइंट्स होते हैं फॉर स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स. अगर हम लोग कहीं पे भी देखेंगे सो आवर मेजर क्लाइंटेल आल्सो फॉल्स इन पार्ट ऑफ एमएसएमईज. अगर हमारे पास में उनके बारे में क्या स्कीम्स है, उनका आइडिया है तो वी कैन मेक देम अवेयर, वी कैन गेट इंसेंटिव्स फॉर देम, वी कैन हेल्प इन इंसेंटिव्स के बारे में. अगेन आई विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स. देयर आर लॉट ऑफ इंसेंटिव्स. क्लाइंट को लगता है कि हमको मिल नहीं सकता है, पर अगर आप कुछ सर्टेन स्टेप्स, पॉलिसीज, उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो तो यू गेट इट. दैट इज हाउ माय प्रैक्टिस आल्सो स्टार्टेड इन दिस एरिया. क्लाइंट को लगता था कि नहीं मिलता है, सो वी गिव अ ट्राई ऑन दैट. समहाउ विद गॉड्स ग्रेस हम लोग को फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर ही सक्सेस मिल गया, एंड दैट इज हाउ आवर प्रैक्टिस स्टार्टेड इन दिस एरिया. सो अगर हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको प्रॉपर गाइड करते हुए काम करते हैं तो थिंग्स हैपेंस. Just a minute. Visible? Yes, yes. Let's come. So अब हम लोग चैलेंजेस देखें. एमएसएमईज के साथ में चैलेंजेस क्या आते हैं. First is lack of enough finance in absence of collateral security. Large corporates होते हैं, उनके पास में collateral securities होती है, उनके existing plant होते हैं, land, building, machineries, everything they have, and they have other collateral securities also which they can offer. पर MSMEs के साथ में challenges होते हैं, उनके पास में limited capital होती है, 2, 3, 5 करोड़ से वो अपना business, जहाँ पे working capital में भी infusion की जरूरत रहती है, आपने कुछ plant and machinery में investment किया, वहाँ पे भी जरूरत रहती है. So collateral is something which is a big challenge for MSMEs. उसके resolutions भी है, that will discuss in later slides, but first we'll discuss कि उनके लिए challenges क्या आते हैं.
Timely recovery of dues for from the customers, again a big challenge for MSMEs. माल बेच दिया है, 6 महीने लग रहे हैं, 12 महीने लग रहे हैं पेमेंट आते हुए. लार्ज कॉर्पोरेट्स को तो मिल जाता है, डिलीवरी किया, उनके फॉलोअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बट इन MSMEs देयर आर लॉट ऑफ challenges to recover the dues after giving the goods and services. कंपटीशन फ्रॉम लार्ज बिजनेसेस के अंदर उनके पास में इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दे हैव एनफ कैपिटल. सो बट MSMEs के साथ में अगेन कॉस्टिंग का compete करना इज अ बिग चैलेंज फॉर MSMEs. Then lack of skilled labors to operate new technologies, again this is a big challenge for MSMEs. So government has also identified, हम लोग को अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, इतना कंट्रीब्यूशन है, तो we have to support MSMEs whatever we can do best for them. So उसके रेजोल्यूशन में हम लोग आएंगे, उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. द रीजन बीइंग डिस्कसिंग द डेफिनेशन ओवर हियर इज 2006 का जो MSMED एक्ट आया था, उस टाइम पे जो MSME की डेफिनेशन थी वो 2020 तक 14 साल तक सेम डेफिनेशन कंटिन्यू होती रही. हमारा कैपिटल इंडेक्सेशन जो होता है वो भी 5 से 6% इंक्रीज करता है हर साल के अंदर. उसके बाद इकोनॉमी ऑन नेट लेवल इंडिया 4.5-5% के आसपास ग्रो करती है, बट कभी भी वो डेफिनेशन को उन्होंने रिविजिट नहीं किया. वी रिप्रेजेंटेड at various forums also. Nitin Gadkari ji, he was heading this MSME ministry in the central. हम लोग ने represent भी किया था from various forums that this definition should be changed. The reason being, आपने 10 करोड़ का plant and machinery का cap रखा हुआ है for MSMEs, उसके ऊपर का MSME में classify नहीं होता. Those are classified in large corporates. So but they doesn't get the benefit. अगर आपको actual में scheme के benefits देने हैं तो you have to increase the spectrum of this scheme, this definition. So finally, Nirmala Sitharaman ji in 2020 they changed this definition of MSME. हम लोग एक बार उसका criteria देख लेते हैं. इसमें एक important thing I would like to discuss with you. Revised definition of MSME enterprise. So enterprise word is slightly important. मैं उसको highlight करता हूँ and I'll explain you also. एक कंपनी है, so we take an example of a private limited company. उसकी 2 यूनिट्स है. एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा वसई के अंदर यूनिट है उसका, और दूसरा यूनिट उसका अंकलेश्वर में गुजरात के अंदर है. सेम कंपनी, दे हैव 2 यूनिट्स. अभी करंट डेफिनेशन के हिसाब से, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग 50 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में कंसीडर करते हैं. इन्वेस्टमेंट वुड बी कंसीडर्ड एज MSME. उसका 40 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वसई के अंदर, 40 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है अंकलेश्वर वाले प्लांट के अंदर, दोनों में. सो अगर सिंगल कंपनी है, दोनों को कंबाइन कर देते हो 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है. सो that is crossing the limit of threshold of 50 crores. But since they have used the word enterprise, वो लोग कंपनी का आइडेंटिफाई नहीं करते. So they say that अगर आपकी 2 यूनिट्स है, सेपरेट यूनिट्स है, दोनों में आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से नीचे है, बोथ आर क्लासिफाइड एज MSME. आपको दोनों के अंदर MSME के बेनिफिट्स मिलेंगे. So this is an important thing. कई बार हम लोग कंसोलिडेशन लेवल पे देखते हैं. इसमें भी एक, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया सपोज महाराष्ट्र और गुजरात का. अगर किसी की महाराष्ट्र में भी 2 यूनिट्स हैं, अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करते हैं. आपका एक यूनिट वसई के अंदर है, दूसरा भिवंडी में यूनिट है. इन दैट केस अगेन, तो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, तालुका या तहसील की एक डेफिनेशन होती है. सेम तालुका में अगर आपकी 2 यूनिट होंगी तो फिर आपकी सेकंड यूनिट रहेगी, उसको आपको कंबाइन करना है. बट इफ इट इज इन अ डिफरेंट तालुका, इन दैट केस दोज अगेन बोथ वुड बी कंसीडर्ड एज सेपरेट यूनिट्स. तो अगर आपकी दोनों वसई में होती है तब आपका 80 करोड़ कंसीडर होगा एंड यू वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज MSME. पर आपका एक भिवंडी में है और एक वसई के अंदर है, बोथ वुड बी क्लासिफाइड एज MSME. सो डिफरेंट उद्यम लेना पड़ेगा. हाँ, सो उद्यम के अंदर द थिंग इज, अभी उन्होंने उसको पैन बेस्ड और GST बेस्ड किया हुआ है. सो इन टर्म्स ऑफ GST आपके दोनों के सेपरेट, अगर आपका गुजरात और महाराष्ट्र का तो आपको सेपरेट मिल जाता है, पर इन केस ऑफ सेम स्टेट में रहता है देन देयर वुड बी अ सिंगल पैन बेस्ड है. सो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द बेनिफिट, जब आप इंसेंटिव्स के लिए जाते हो तो यू रिप्रेजेंट इट. वो लोग उद्यम बेसिस पे नहीं जाते हैं, वो लोग आपको बोलते हैं कि इफ दीज आर 2 यूनिट्स सेपरेटली देन दे विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ MSME फॉर बोथ द यूनिट्स. तो इनफैक्ट उद्यम में प्लांट एंड मशीनरी दोनों का मर्ज हो गया.
करेक्ट. सो उद्यम में आप कहा जाता है, पर देन यू हैव टू रिप्रेजेंट व्हेन यू गो टू द इंसेंटिव्स, उनको आप दैट इज बीइंग मींस वी हैव आल्सो डेल्ट इन वेरियस प्लेसेस जहां पे वो आपकी दोनों सेपरेट यूनिट कंसीडर करते हैं. आपको उद्यम सिंगल रह सकता है, बट यू रिप्रेजेंट एंड दे विल कंसीडर बोथ एज अ सेपरेट. वी आर आल्सो ट्राइंग कि यहाँ पे भी उन्होंने पैन बेस्ड किया है, सो आपका क्लब हो जाता है, बट यू शुड ट्राई टू गिव व्हेन यू आर गिविंग इट एज एन डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज. हाँ, सो इन सम डिपार्टमेंट्स स्टिल वो टोटल वाला कंसीडर करते हैं. सिडबी में आप जाते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम इंसेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू. इंसेंटिव के अंदर दे कंसीडर बोथ एज ए. हाँ, करेक्ट. Yes, so in some departments still, so we are trying in MSME also कि आप उसको अगर आपने enterprise level पे किया है तो you should give separate registrations for both the units. So definition के अंदर again micro, small, medium. पहले जो 10 करोड़ में आपका मीडियम फिनिश हो जाता था प्लांट एंड मशीनरी में, नाउ दे हैव इंक्रीज्ड अप टू 50 करोड़. सो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, 5 करोड़ इन टर्नओवर इज माइक्रो, 10 crore investment in plant and machinery, and 50 crore turnover is small, and 50 crore investment in plant and machinery to 50 crores turnover is medium. So just for the sake of remembrance, 1:5 का रेशियो आपका 1 करोड़ 5 करोड़ 10 50 50 250. So just for the sake of remembrance, आपको कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो हम लोग जो दिखाते हैं, तो दे वांट टू से आपने मशीनरी अगर डाला तो उसको एटलीस्ट 5 बार यूटिलाइज कीजिए इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर. Again, an important thing, they have considered here only investment in plant and machinery. So अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 45 करोड़ का है, पर लैंड और बिल्डिंग के अंदर एडिशनल 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सो टोटल इज 50 plus 45 95, but they say that again that would be considered as MSME because उन्होंने डेफिनेशन के अंदर खाली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कंसीडर किया है. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. कई बार हम लोग जाते हैं क्लाइंट के पास में, बोलते हैं मेरा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सो आई वुड नॉट बी MSME. पर जब आप उसका बैलेंस शीट डिटेल में देखेंगे, आप उससे फिक्स शेड्यूल मंगाएंगे, देन यू विल कम टू नो कि अगर उसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से नीचे का है, ही कुड बी क्लासिफाइड एज MSME. सो अगेन दिस इज अ गुड थिंग. थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएं, क्लाइंट को एडवाइस करें, तो जो हम लोग को अपफ्रंटली लगता है कि लार्ज क्लाइंट रहेगा, बट अल्टीमेटली ही कैन गेट बेनिफिट ऑफ MSME. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. टर्नओवर के अंदर अगेन इज एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन ऑफ 550 और 250. सो नो, एक्सपोर्ट आप कितना भी खींचिए टू गिव प्रमोशन टू द एक्सपोर्ट्स, व्हाट दे हैव सेड इज 200 करोड़ के 250 के ऊपर अगर आपने और 200 300 500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, that would be excluded while considering the definition of MSME. So again, to give boost to the exports, they have specifically kept it out. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, ये मैंने जस्ट जो टेक्निकल वहां पे डेफिनेशन है उससे कवर कर लिया है. प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपका एवरीथिंग विच इज प्लांट एंड मशीनरी वुड बी कवर्ड एक्सक्लूडिंग जीएसटी कॉस्ट, क्योंकि जीएसटी अपना कैपिटलाइज करके इट इज अ बैलेंस शीट आइटम, हम लोग उसको इनपुट में ले लेते हैं, एंड इट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. दैट इज हाउ दे हैव टेकन. एक डेफिनेशन में उन्होंने कुछ एक्सक्लूजन्स दिए हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा, कई बार ये हमारे पास में क्वेरीज आते हैं. No, sir, it is they have taken on historical cost. So gross block पे they consider it. WDV, correct. So income tax वाला जैसे ही WDV आ जाता है, पार्टनरशिप हम होता है जहां पे उनके पास में ग्रॉस ब्लॉक नहीं होता, in that case they consider WDV because, but अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, in that case they consider ग्रॉस ब्लॉक. एक्सक्लूजन्स में देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच दे हैव एक्सक्लूडेड. हम लोग यहाँ पे 2 एक्टिविटीज के बारे में जो हमारे पास में कई बार क्वेरीज आ जाती हैं, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. नॉर्मली होलसेलर्स और रिटेलर्स भी पूछते हैं कि वेदर वी आर MSMEs, और ऑन उद्यम पोर्टल दे हैव स्टार्टेड गिविंग रजिस्ट्रेशन, पर उसमें आपको स्पेसिफिकली लिख के आता है इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बैंक लोन. बैंक्स में दे हैव गिवन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, हम लोग सब जानते हैं, उनका PSL जो रहता है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्लाइटली कंपेटिटिव. सो टू गिव बेनिफिट्स टू MSMEs दे हैव कंसीडर्ड ऑल MSMEs इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जहां पे आपको कंसेशनल रेट पे मिल जाता है. सो ओनली फॉर दैट
पर्पस यू कैन टेक उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, पर बाकी कोई भी बेनिफिट्स होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को नहीं मिलता है। बाकी सब चीजों के लिए व्हाट वी कंसीडर इज दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग, दोज वुड बी कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विस, दे वुड बी कंसीडर्ड एज एमएसएमई। सो ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस उन्होंने होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को रजिस्ट्रेशन देना स्टार्ट किया है। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमएसएमई, उद्यम रजिस्ट्रेशन में इस पे शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, बिकॉज अगेन वी हैव अ पॉसिटी ऑफ टाइम। तो सर स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में ले तो बेटर रहेगा, सो दैट आई विल सर्टेनली टेक आपके जो भी क्वेरीज रहेंगी और वी वुड बी एबल टू कंप्लीट, वी विल सर्टेनली टेक द क्वेश्चंस इफ यू परमिट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता हूँ, इट इज अ सिंपल प्रोसेस। उद्यम के अंदर अगेन हम लोग जो बात करते हैं, कई बार क्लाइंट्स को कुछ सर्विसेज रहती है वहां पे वी कैन चार्ज अ प्रोफेशनल फीस, बट उद्यम रजिस्ट्रेशन समथिंग उनको कई बार एमएसएमईज को सपोर्ट चाहिए होता है, वी कैन गिव, जैसे कहीं पे कोई इंडस्ट्री में डिस्काउंट्स रहते हैं, फ्रीबीज रहती है, वैसे ही हमारे लिए दीज थिंग्स कुड बी यूज्ड एज अ फ्रीबीज। आपने एक बार उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन करके दिया, ही विल सर्टेनली कम फॉर अदर सर्विसेज टू यू, या फिर आप उसका सब्सिडीज का काम कर रहे हैं विच इज a big chunk you are helping him out, so these things we can give him as an additional benefits, jahan pe we might not charge the fees, and it is a very simple straight through process, koi document upload nahi karna padta hai, aapka automatically GST और PAN linked है, so this registration happens in a very short period, आधे घंटे से 1 घंटे में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड, these are the requirements for उद्यम registration. अब बेनिफिट्स, आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्लाइंट को वी हैव टू टेल कि बॉस आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे स्पेंड कर लेते हैं। एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मैं थोड़ा सा टाइम इस स्लाइड पे ऑन कमिंग स्लाइड्स आई विल सर्टेनली गिव। Eligible for trades portal registration, trade receivable discounting system, again a government has done a tremendous work on this. Eligible for MSME समाधान, समाधान शायद अपन लोगों में से काफी लोगों ने सुना भी रहेगा, otherwise I'll give some time on this. To recover the dues of MSMEs, government has tried their best and things are happening, जो मैं आपको कुछ डेटा भी I'll share with you. So looking at और practically हम लोग काम भी कर रहे हैं समाधान के अंदर, so things are happening. So after registration, they are eligible for various state and central government subsidies, eligible for classification under priority sector, जो हम लोग ने बात किया। So not only wholesale and retail, हमारे बाकी भी manufacturing clients जो भी MSME में consider होता है, they would be considered for a priority sector lending. Eligible for CGTMSE collateral free loan from banks. So again CGTMSE हम लोग में सबको आइडिया रहेगा ही, पहले भी the CGTMSE scheme is from last 20-25 years as per my understanding, और पिछले 10 सालों में they have increased the pace, they have instructed the at least government instructions to PSU banks, those who are eligible, let's give loans, collateral free loans under CGTMSE scheme, तो काम इसमें भी हो रहा है banks level पे। Eligible for machinery finance under SIDBI at concessional rate of interest, SIDBI की बहुत सारी concessional rate of interest for MSMEs, जहां पे अगर आप MSME हो तो they give you the loans. Benefit under Income Tax Act Section 43B subsection H, ये शायद हम लोग को सबको जानकारी रहेगी, अभी फाइनेंस एक्ट 2023 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ब्रॉट इट दिस सेक्शन टू सपोर्ट एमएसएमईज, उनके पेमेंट्स आने चाहिए, उनको वर्किंग कैपिटल कंटिन्यूस मिलते रहना चाहिए, विद गुड इंटेंशंस दे हैव ब्रिंग इन। कुछ लेकुनाज हो सकते हैं इसके अंदर, आई थिंक ऑन वेरियस फोरम्स आफ्टर बजट आल्सो देयर वर लॉट ऑफ मीटिंग्स ऑन दिस सेक्शन, बट हम लोग को इंटेंशन देखना है, उनका इंटेंशन अच्छा है सेक्शन लेके आने का टू सपोर्ट MSMEs. We are hopeful in future जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, they will try to plug in whatever is the lacuna in section 43BH. So these are the benefits for MSME. अब हम लोग जैसे what are the benefits, we'll slightly give some time on these. GEM portal for MSME. Friends, government e-marketplace.
they have created this for MSME. और मैं आपको एक practical example from our client also I can give. My client, they are in manufacturing of river rafts बनाते हैं वो, और defense के अंदर भी काफी use होती है. So they are MSME. टर्नओवर आई थिंक 2 साल पहले उनका टर्नओवर वाज अराउंड 22 करोड़ रुपीस टर्नओवर दे वर डूइंग इन फाइनेंशियल ईयर 22-23. उनको जेम पोर्टल के बारे में मालूम चला. दे रजिस्टर्ड ऑन द जेम पोर्टल, और गवर्नमेंट को कहीं पे रिक्वायरमेंट रहेगा राफ्ट्स वगैरह का. सो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे डायरेक्टली गॉट द ऑर्डर ऑफ 2 करोड़ रुपीस. जो कंपनी का 20-22 करोड़ का टर्नओवर, उसमें से अगर उसको 2 करोड़ का डायरेक्टली गवर्नमेंट से फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिलता है, सो दे कोई दूसरे सोर्स से नहीं गए. डायरेक्टली वेंट फ्रॉम दिस जेम पोर्टल सोर्स. दे सोर्स दैट थोड़ा कॉम्पिटिटिव रेट्स वगैरह आपको पुट करना पड़ता है, विच दे डिड, एंड दे गॉट दैट ऑर्डर. 4 महीने में एग्जीक्यूट करके उनका पैसा भी आ गया. सो इट इज अगेन ए स्ट्रेंथ फॉर MSMEs. अगर हम लोग अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा एजुकेट करते हैं जो इस फील्ड के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग है, MSME क्लाइंट्स, आप एटलीस्ट जेम पोर्टल पे रजिस्टर करके छोड़ दीजिए, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके छोड़ दीजिए. गवर्नमेंट का कहीं पे भी. सो ऑन जेम पोर्टल बायर आर ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बैंक्स, या फिर आपकी डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, अपनी लोकल बॉडीज हो गई, BMC, PMC, दे ऑल आर एलिजिबल बायर्स. और वो अपनी लिस्टिंग्स, उनको भी अगेन गवर्नमेंट ने दे हैव गिवन टारगेट्स. अगर आप एग्जांपल पूरे साल में 100 रुपए का सोर्स करते हो, सो थ्रू जेम पोर्टल यू हैव टू एटलीस्ट सोर्स 10% और 20% फ्रॉम दिस पोर्टल. सो इट इज अगेन क्रिएटेड अ गुड विंडो फॉर MSMEs. आप सोर्स कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए ऑर्डर डायरेक्टली. देयर इज नो अदर सोर्स. आप यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम जेम पोर्टल. सो विच इज अ वेरी गुड पोर्टल. 2016 में उन्होंने स्टार्ट किया. 20 तक उसका पेस थोड़ा स्लो था, बट आफ्टर 2020 the pace increased. Who can be seller on GEM portal? OEM, original equipment manufacturer, MSMEs. We are talking about sellers would be MSMEs, authorized channel partners of OEMs, authorized dealers of OEMs, और अगर आप import करके sell कर रहे हैं तो you should be authorized dealer of that importer. मैंने शायद हाईलाइट किया है यहाँ पे एक. सो जेम पोर्टल इज नॉट ओनली फॉर गुड्स, इट इज फॉर सर्विसेज आल्सो. सो MSMEs who are providing services can also register if they are MSME registered. Now the question is, can CA firm register themselves on GEM portal for services? So answer is yes. Our institute in 2022 allowed, I'll just share the announcement also by the institute. On 4th March 2022 announcement, they have given chartered accountants in practice firm of CAs are permitted to register on GEM portal subject to compliance with the provisions of Code of Ethics. So, अगर गवर्नमेंट को कहीं पे सीए की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, मे बी सम मैनेजमेंट ऑडिट्स और व्हाटएवर दे वांटेड, दे पोस्ट ऑन जेम पोर्टल, एंड इफ वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रजिस्टर, वी कैन बिड फॉर दैट एंड वी कैन सोर्स द बिजनेस. सो यहाँ पे हमारे लिए अगेन जो हम लोग हमेशा फायदे वाली बात करते हैं, फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम सीएज आल्सो. सो आई रिक्वेस्ट, अगर हम लोग ने नहीं रजिस्टर किया है तो वी शुड ऑलवेज रजिस्टर ऑन द जेम पोर्टल. एटलीस्ट हमारी फर्म को करके रखते हैं, कभी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो we can always grab such kind of opportunities. Pardon? Yes, certainly that is also a benefit. So MSME का registration तो सब CA firms को कर लेना चाहिए as per my advice. So super, हाँ होगा ही बिल्कुल. Who can be buyers? मैंने वैसे कवर कर लिया है. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, रेलवे, डिफेंस, जस्ट एन एग्जांपल, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSU, बैंक्स की कोई भी रिक्वायरमेंट्स रहती है फ्रॉम स्टेशनरी और व्हाटएवर इट इज, दे हैव टू पोस्ट ऑन सर्टेन पोर्शन, दे हैव टू पोस्ट ऑन दिस जेम पोर्टल एंड दे हैव टू सोर्स फ्रॉम दिस पोर्टल. Public sector finance companies, public sector insurance companies, then local bodies like BMC, PMC, they all have to register. दिस इज जस्ट अ डेटा. अभी तक उन्होंने 5,76,000 करोड़ का ऑर्डर वैल्यू दे हैव जनरेटेड. 11,895 प्रोडक्ट्स आर रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल एंड 311 सर्विसेज. Till date, approximately 8.6
15 lakh sellers registered on GEM portal. In financial year 2022-23 they processed order of 1.52 lakh crore. अपन जो पिछले स्लाइड पे 5.5 लाख करोड़ का फिगर का बात करते हैं, उसमें से 1.52 lakh crore order was processed in 22-23. अगर 21-22 और 22-23 को ऐड कर लेते तो 2.50 lakh crore, almost 50% of the business is being generated in these 2 years. So they are effectively working. These are just some product listings on the GEM portal website. Advantages I think we have discussed. So मैं थोड़े से कुछ स्लाइड्स में जहां पे अपन इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे डिस्कस करेंगे. सब्सिडीज में हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे. सो आई विल जस्ट रन थ्रू जहां पे ट्रेड्स पोर्टल, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम. अगेन जो हम लोग एमएसएमईज के लिए चैलेंजेस डिस्कस करते हैं, उनको फंडिंग्स नहीं मिलती है, वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज है, आपने गुड सेल किया, आपको रिकवरी में टाइम लग रहा है. सो दिस इज अगेन अ पोर्टल क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. देयर आर 3 पोर्टल्स. अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, RXIL, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट. सो एमएसएमई सेलर्स they can register on this. Buyers के अंदर वहां पे not buyers I would say, जिसको आपने good sell किया है, they are also large corporates registered on this. And the financiers are all banks. जितने भी बड़े PSUs या private banks देखेंगे, they all are financing on this. Again इसमें मैं आपको practical example हमारे केस में दे सकता हूँ. One of my client, they are doing बॉडी बिल्डिंग फॉर टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स का चेसिस आ जाता है ट्रक का, उसका बॉडी बिल्डिंग वो लोग खुद नहीं करते, बाहर से कराते हैं. सो माय क्लाइंट वाज इन बॉडी बिल्डिंग. अगेन एमएसएमई, उसने पुणे के पास में अपना यूनिट लगाया था. कुछ 25-30 करोड़ का छोटा सा टर्नओवर व्हेन ही स्टार्टेड. सो दे वर टेकिंग वर्किंग कैपिटल फ्रॉम अ पीएसयू बैंक. सीसी लिमिट लिया हुआ था, जहां पे उनको, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 years बैक, उस टाइम पे उनको 8.5-9 के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था. हम लोग को भी मालूम था इस जेम ट्रेड्स पोर्टल के बारे में. भी एडवाइस टू द क्लाइंट, उन्होंने वहां पे जाके रजिस्टर किया. टाटा मोटर्स नीड टू अप्रूव, उनको भी वहां पे रजिस्टर करके अप्रूव करना पड़ता है. बट सिंस यू आर सप्लाइंग टू द टाटा मोटर्स, they would certainly help you out in this. So they did it. यहाँ पे फाइनेंसिंग में उनका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज कन्वर्टेड टू 5.75, 6% के आसपास 3 years बैक. अभी 3 साल में आपका बेस रेट वगैरह सब बढ़ गया है, सो कॉस्ट हैज स्लाइटली इंक्रीज. पर कंपेयर टू 9% उसको सीसी में लगता था एट अ कॉम्पिटिटिव रेट फ्रॉम पीएसयू बैंक, वहीं पे उसका 6% के अंदर फ्रॉम दिस ट्रेड्स पोर्टल बिल डिस्काउंटिंग होना स्टार्ट हो गया. सो ही immediately started saving 3% on his financing cost. सीसी लिमिट उसने रखा. सीसी में हम लोग सब जानते हैं जितना यूटिलाइज रहेगा उतना आपको देना है. सो फॉर यू नो एनी इवेंचुअलिटीज या कभी उसको कुछ बेनिफिट मिलता है तो उसने सीसी कंटिन्यू रखा. बट ही स्टार्टेड डिस्काउंटिंग ऑल हिज टाटा मोटर्स बिल फ्रॉम दिस ट्रेड्स पोर्टल. सो अगेन सच काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे हो सकता है हमारे लिए कमर्शियली फॉर वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ नहीं बनेगा, पर एज अ यू नो वैल्यू एडेड सर्विसेज वी कैन ऑलवेज एडवाइस आवर क्लाइंट्स, और उनके साथ में हमारा एक रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है. So this is something this is applicable for services. Effectively I would say most of manufacturers are doing on this. आज टाटा मोटर्स है, उसको सर्विसेज में बहुत ऐसा कोई मेजर सर्विसेज का रिक्वायरमेंट नहीं रहे. So if your buyer they recommend you on this, then certainly it can be done. RXIL, M1 Exchange, Invoice Smart, all 3 are government websites, but run by उन्होंने शायद एक जगह Axis Bank को they have made it, but on all the websites these 3 are government websites. और सारे banks अपने PSUs, private banks, they all are financiers on these 3 websites. Benefits: easy access to working capital, collateral free funding, 24 hours में आपका फंडिंग आ जाता है, सीमलेस एंड सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट इज कोलेटरल फ्री, फास्ट बिजनेस एक्सपेंशन, आपके लिए कैपिटल एमएसएमई को तुरंत मिल जाती है. फ्रेंड्स, एमएसएमई समाधान शायद आप लोग को सबको पता भी रहेगा, बट आई अगेन ट्राई टू एज अ मैटर ऑफ रिकैप.
MSMEs के लिए इन MSMED एक्ट दे हैव क्रिएटेड अ प्रोविजन, आपको क्या पेनल्टीज वगैरह होनी चाहिए, आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, पर उसको रिकवर करने का उन्होंने कभी प्रोसेस डिफाइन नहीं किया था। सो गवर्नमेंट फेल्ट कि कुछ ना कुछ आपको रिकवरी का प्रोसेस होना चाहिए। हर टाइम आप कोर्ट के पास में जाओगे, कोर्ट में हमको पता है कितने केसेस पेंडिंग है, और वहां पे MSMEs के केसेस तो कोई देखेगा भी नहीं, कंज्यूमर कोर्ट के केसेस रहते हैं, पीपल डजंट पे इंटरेस्ट, डजंट पे टाइम ऑन दैट। सो दे ट्राई टू क्रिएट MSME समाधान, जहां पे उन्होंने विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। हर स्टेट के अंदर जो आपके DICs रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहते हैं, वहां पे उन्होंने काउंसिल बनाया, उनका जो जॉइंट डायरेक्टर रहता है उसके साथ में 1 पर्सन इज फ्रॉम सम बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो, दो 2 पीपल आर फ्रॉम DIC। सो जैसे अपना एपेलेट ट्रिब्यूनल काम करता है, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे एक काउंसिल बनाया है for resolving the outstanding dues of MSMEs, जहां पे when seller is MSME, he can go to MSME समाधान पोर्टल पे आप अपलोड कीजिए। if your buyer is not paying to you, you can try to recover it from this MSME समाधान। हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे I'll again try to focus on couple of words. They have covered here only micro and small enterprise, so medium ko they have not covered. Again, we don't understand when it is a MSME Act why they have not covered, but somehow they have kept medium enterprises out of this. In Samadhan, they register the cases only of micro and small enterprise. स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर, MSEFC जिसको हम लोग बोलते हैं, विच इज DICs आपका, जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में यू विल हैव दैट। एंड अपने बॉम्बे के अंदर हम लोग वी हैव फॉर मुंबई, इट इज इन चेंबूर DIC ऑफिस है, वहां पे दे हैव क्रिएटेड दिस काउंसिल। थाने के लिए हम लोग बात करते हैं तो वागली इंडस्ट्रियल स्टेट में है, और अपने पास के में डिस्ट्रिक्ट्स का बात कर लेता हूँ। पालघर में, पालघर इज अगेन अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ थाने आई थिंक। सो इन पालघर दे हैव अगेन MSEFC काउंसिल, जहां पे आपका सेलर इज MSME, उसने गुड्स सप्लाई किया है पर उसका पैसा अटक गया है आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, सो बायर इज नॉट पेइंग, दे कैन गो टू दिस काउंसिल, वहां से आपको ऑर्डर पास होता है एंड दैट सेलर हैज टू पे। अगेन इसका प्रोसेस है 90 डेज में, दे गिव यू द चांस ऑफ 3 हियरिंग्स, अगर आप नहीं पे करते हो देन दे पास द ऑर्डर, और उसके बाद में उसके आगे रिपरकशंस है व्हिच विल डिस्कस। So time limit they have not defined, what they have defined is जिस टाइम पे आपने गुड सेल किया था उस टाइम पे आप MSME रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट यू कैन गो आफ्टर 2-3 years के बाद में भी जा सकते हो। सो दे हैव नॉट डिफाइंड एनी टाइम लिमिट फॉर दिस। थोड़ा सा मैं फिगर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम MSME समाधान इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। सो टिल नाउ 1,63,000 cases has been filed on this MSEFC portal, जिसमें से अगर आप ऑरेंज और ग्रीन वाला देखिए 15,236 cases has been mutually settled, मतलब एक बार को एप्लीकेशन करने के बाद में या तो दोनों ने आपस में, बायर सेलर ने डिसाइड कर लिया कि लेट्स रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड मूव अहेड, और केसेस डिस्पोज्ड ऑफ बाय MSEFC काउंसिल 32,487। सो 32,000 केसेस उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं बाय पासिंग द ऑर्डर, या फिर 15,000 केसेस म्यूचुअली, दोनों को ऐड करते हैं लगभग 48,000 केसेस हैज बीन रिजॉल्व्ड आउट ऑफ 1,63,000 केसेस। सो 30% इज द सक्सेस रेट, जस्ट टू समराइज। आप उसके बाद में कोर्ट प्रोसेस तो सबके लिए ओपन है ही, पर इन्होंने ये क्रिएट करके एडिशनल सपोर्ट गिविंग टू MSMEs, they have tried to resolve 30% of cases till now. दिस इज जस्ट अ पोर्टल जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके देन MSME आपको फिजिकली भी सबमिट करना पड़ता है, बट अगेन नॉट अ वेरी टीडियस। यहाँ पे हमारे लिए काफी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज क्लाइंट हमारे MSME क्लाइंट्स रहते हैं, उनका हो सकता है कहीं पे डिस्प्यूट होगा, पैसा अटका हुआ रहेगा, सो दे नीड सर्विसेज। सो इन दिस केस अ CA कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन MSEFC काउंसिल। इन सम केसेस दे टेक हेल्प ऑफ एडवोकेट्स ऑल्सो, लॉयर्स ऑल्सो, बट नो वेयर इट इज रिटन, सो CA कैन also represent in MSEFC। हाँ, उसके बाद में अगर बायर है उसको फर्दर जाना है कोर्ट में, then court process we cannot represent, then they have to take the help of advocates, but till MSEFC we can at least help our clients. Again, for we chartered accountants, if we are MSME registered,
और हमारा पैसा अटक जाता है, वी हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू द क्लाइंट, और उसमें अभी पैसा नहीं दे रहा है, सो कैन वी फाइल द केस इन MSEFC? सो आंसर इज यस. We can also apply to MSEFC and we can recover our dues from, which is again an additional benefit for chartered accountants. So हमारे clients को भी हम लोग educate कर सकते हैं. We can earn the professional fees by representing our client, as well as अगर हमारे लिए CAs के लिए भी कहीं पे if our fees is stuck up, we can go through this channel. फ्रेंड्स, हम लोग ने अगेन प्रैक्टिकली देखा था, वन ऑफ माय क्लाइंट, दे वर सप्लाइंग, हमारे जो मेट्रो के ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं वहां पे स्कैफोल्डिंग्स लगते हैं, फोमवर्क लगता है पिलर्स वगैरह बनाने के लिए. सो माय क्लाइंट, दे वर इंजीनियरिंग दैट गुड्स एंड दे वर सप्लाइंग टू वन ऑफ द सप्लायर ऑफ मेट्रो दीज फोमवर्क. उनका दे स्टक अप विद अराउंड 1.5 करोड़ ऑफ रुपीज बाय सप्लाइंग टू दैट. उन्होंने MSEFC के अंदर गए एंड आफ्टर 2 हियरिंग्स दे कुड रिकवर देयर outstanding dues. So it is effectively, we have seen in practical, थोड़ा सा आपको follow up करना पड़ता है, but when we guide the clients properly, the things happen. So that is what I can share with my practical experiences. Key documents. So process is 90 days के अंदर they give 3 chances of the hearing to both the parties. After that they pass the order. Now when they pass the order, if it is in against of the buyer, so buyer के against में गया, now he has the option either to pay or they can approach to the court. But try to understand, यहाँ पे एक important thing है, अगर उसको कोर्ट में अप्रोच करना है, then he has to deposit at least 75% of the disputed amount, then only he can go to the court. So again it is a penal provision. वो आगे भी लेके अगर dispute को जाना चाहिए, he has to at least deposit 75%. So they will try to resolve, you know, cases wherever it is possible in this MSEFC council. सेक्शन 43BH, आई थिंक काफी फोरम्स में और उस पर डिस्कशन हो चुका है, तो इस पे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. सो इट इज अगेन अ प्रोविजन विच वाज बॉट इन फाइनेंस एक्ट 2023, wherein it says that MSME का अगर किसी भी, whether the buyer is MSME और large whatever it is, अगर उसने पेमेंट नहीं किया है, that time limit of 15 and 45 days अगर उसमें नहीं किया है, ईयर एंड पे आपका आउटस्टैंडिंग है, then it would be given as an expense in the books of buyers on the basis of payment. मतलब आप जब पेमेंट करोगे तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा. सो इट इज अ काइंड ऑफ पेनल्टी फॉर हिम. आपने अगर करंट ईयर में MSME का पैसा रोका हुआ है, सो दैट वुड बी नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसमें खाली जो लेक्यूना है वो आपका ईयर एंड वाला कंसिडर होता है. आपने ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने से मार्च अप्रैल मई के अंदर उसका गुड्स लिया था और आपने दिसंबर में जाके उसको पेमेंट किया, सो यू हैव ऑलरेडी डिलेड फॉर 7 to 8 months, पर आपने दिसंबर में पेमेंट कर दिया है, स्टिल दैट वुड बी गिवन एज एन एक्सपेंस. सो उस केस में उसको कोई पीनल नहीं हुआ, बट स्टिल ही डिड नॉट पेड द MSME क्लाइंट फॉर 7 to 8 months. So there are some lacunas which we again a lot of bodies have represented, but I think इसके ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. So we'll try to cover subsidy part. ये एक important I wanted to share. Now friends, come to various subsidies and incentives to MSMEs. हम लोग ने definition वगैरह MSMEs के देखी, उनके लिए बहुत सारे incentives benefits है. And let me tell you, मेरा भी प्रैक्टिस वैसे ही स्टार्ट हुआ था. हम लोग फंडिंग का काम करते थे. क्लाइंट को ही टोल्ड अस कि लेट्स ट्राई, हम लोग को तो शायद सब्सिडीज नहीं मिल पाता है, आप ट्राई कर लीजिए, मिल जाता है तो, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द फाइनेंस और मे बी डिपार्टमेंट में जाना, डील करना, सो दे डजंट अंडरस्टैंड. सो वी ट्राइड, वी हेल्प देम एंड समहाउ विद गॉड्स ग्रेस हमको फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर ही सक्सेस मिला. दैट इज हाउ आवर प्रैक्टिस स्टार्टेड इन सब्सिडीज. उसके बाद में लगा कि अगर आप क्लाइंट को प्रॉपर्ली एजुकेट करते हैं, MSMEs में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, चैलेंज होता है, उनके पास में टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है. मोस्ट ऑफ द MSMEs आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उसको प्रोडक्ट बनाना पता है, कैसे बनाना है,
उसको सेल करना है, ही वुड हैव चैनल फॉर द सेलिंग। बट फाइनेंस के अंदर और मे बी अगर आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव सब्सिडीज मिलते हैं, उसको पता रहेगा मिल सकता है, बट ही डजंट नो हाउ टू गेट इट, या उसके लिए प्रोसेस वगैरह क्या रहता है। सो सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम लोग इस फील्ड के अंदर उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इट इज अ सब्सिडी। अगेन क्लाइंट को जब नॉन रिफंडेबल कुछ मिलता है जिसको उसको रिटर्न नहीं करना है, ही वुड बी सर्टेनली हैप्पी। कैपिटल सब्सिडीज आपको मिलती है, एंड आई थिंक इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर अस आल्सो। वी कैन प्रोफेशनली चार्ज द फीस फॉर सच काइंड ऑफ सर्विसेज। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं व्हाट आर द सब्सिडीज फॉर वेरियस फ्रॉम वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। So there are various subsidies from state and central government. एक सब्सिडी का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट 3-4 टर्म्स आती है, वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सब्सिडीज में लॉट ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ फ्रंट एंडेड सब्सिडी, बैक एंडेड सब्सिडी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, नॉन क्रेडिट लिंक सब्सिडीज। तो मैं थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड करता हूं। फ्रंट एंडेड सब्सिडीज आर जहां पे, सो दी सब्सिडीज आर बेसिकली कैपिटल, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, केपेक्स करोगे, उस पे आपको सब्सिडी मिलेगा। Front ended are subsidies which you get during the implementation of the project or by the time you complete the project. किसी क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में, जब तक वो अपना प्लांट रेडी करता है तब तक आपको 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में वो सब्सिडी मिल जाता है। सो यू गेट दैट मनी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 10 करोड़ का किसी ने प्रोजेक्ट लगाया विच इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 50% विच इज 5 करोड़ का उसको बैंक फंडिंग मिल गया, 3 करोड़ का उसने अपना खुद का कंट्रीब्यूशन लगा दिया, और सपोज 2 करोड़ का उसको वहां पे एलिजिबल सब्सिडी आता है। इफ इट इज अ फ्रंट एंडेड सब्सिडी, देन प्रोमोटर हैज टू ब्रिंग इन, बिकॉज टू सेट अप द लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ही हैज टू ब्रिंग इन द कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे उसको अपना 3 करोड़ कंट्रीब्यूशन ही लगाना, लेके आना पड़ेगा। सो देयर आर माइलस्टोन्स। आपने अगर 50% बैंक फंडिंग हो गया तो आपका 50% सब्सिडी रिलीज हो जाएगा, और बाय द टाइम यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट यू विल गेट द रिमेनिंग 50% सब्सिडी। तो उस केस में उसको 2 करोड़ रुपया अपने पॉकेट से आज की डेट में नहीं लेके आना, ही विल गेट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। So that is considered as a front-ended subsidy. Back-ended subsidy is subsidy which is calculated on your capex, पर इनिशियल में आपको स्टार्टिंग के इंप्लीमेंटेशन के पीरियड पे नहीं मिलेगा। वो या तो आपको 3 साल बाद में मिलेगा, 5 साल बाद में मिलेगा, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 years you will get that subsidy. But so now try to understand. Same example, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 5 करोड़ बैंक फंडिंग मिल गया, 3 करोड़ आपका प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2 करोड़ आपका सब्सिडी है। बट इन दिस केस प्रोमोटर हैज टू ब्रिंग इन दैट 2 करोड़ सब्सिडी ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ही हैज टू ब्रिंग इन 3 करोड़ खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन था, प्लस सब्सिडी का पैसा भी उसको अपफ्रंट लेके आना पड़ेगा। He will get the benefit, but after 3 or 5 years or over a period of 7 to 10 years. So that is the basic difference between front-ended and back-ended subsidy. Credit linked and non-credit linked subsidies are basically जहां पे कुछ सब्सिडीज के अंदर they have made it compulsory, बैंक लोन, टर्म लोन होना कंपलसरी है, तभी हम आपको सब्सिडी देंगे, और कुछ केसेस में they have made it टर्म लोन है भी तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। सो इसके पीछे जो हम लोग लॉजिक समझते हैं, द थिंग इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे आर नॉट वेरी टेक्निकली, उनके पास में उतना मैन पावर भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। सो व्हाट दे से इज, अगर हम लोग ने इसको क्रेडिट लिंक कर दिया, सो ओनस इज ऑन द बैंक। आपका प्रोजेक्ट लगना है तो बैंक का अप्रेजल भी होगा, बैंक वाला विजिट भी करेगा 3 बार वहां पे लगाने के टाइम पे। सो प्रोजेक्ट वुड बी इंप्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर वे, आपका इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सो वी कैन गिव द सब्सिडी। दैट इज व्हाई दे हैव लिंक्ड इट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आज की डेट में क्रेडिट लिंक्ड है, बट इन सम केसेस दे हैव केप्ट इट विदाउट क्रेडिट लिंक्ड आल्सो। सो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक फ्रॉम दैट पर्पस दे हैव मेड इट क्रेडिट लिंक्ड। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज। फ्रेंड्स अगेन एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग ने देखा है, सब्सिडीज में हम लोग को कई बार लगता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर यू कैन नॉट टेक 2 स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, बट वेरी वेल इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो स्कीम्स में मेंशन रहता है, इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स इट इज क्लियरली रिटन on a single project you can take 1 state government and 1 central government subsidy on a same project. There are lot of cases जहां पे लोगों ने 100% सब्सिडी लिया है of the capex, land, building, plant and machinery. I can give you, थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से, बट विदर्भ के अंदर there are lot of जिनिंग प्रेसिंग की, फूड प्रोसेसिंग की, दाल प्रोसेसिंग की, वहां पे बहुत सारी यूनिट्स है, we have client in that area.
60 to 80% सब्सिडी तो उनको विदर्भ रीजन की वजह से आपको जो पीएसआई अपना महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का विल डिस्कस, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी विल डिस्कस। सो 60 to 80% तो आपको पीएसआई के अंदर ही बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपको टफ्स वगैरह का सब्सिडी ले लेते हो, रिमेनिंग 20% ऑल्सो यू गेट इट। सो पीपल आर टेकिंग, वहां पे आपने 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंड दे आर टेकिंग एंटायर 100% ऑफ द केपेक्स एज अ सब्सिडी। एंड लेट मी टेल यू, विदर्भ या फिर हम लोग थोड़ा सा रीजन बिंग, यहाँ पे इन्होंने एरिया वाइज विल डिस्कस इन पीएसआई। तो जो डेवलप्ड एरियाज है वहां पे ज्यादा सब्सिडीज नहीं है, पर थोड़ा सा बॉम्बे से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर जाते हो तो वहां पे सी, डी प्लस जोन रखे हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन दोज एरियाज। सो हम लोग स्टेट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के सब्सिडीज पे आ जाते हैं। वाई महाराष्ट्र, आई थिंक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, हम लोग को ये सब चीज पता है तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। महाराष्ट्र इज अगेन नंबर 1 स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज भी इवन दो वी आर गेटिंग कंपटीशन फ्रॉम गुजरात और तमिलनाडु, स्टिल महाराष्ट्र इज नंबर 1 स्टेट। अच्छा, इसका भी मैं आपको विल डिस्कस इन पीएसआई। अभी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज कौन कौन सी है यहाँ पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट। पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स 2019, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। बहुत बेनिफिट मिल रहा है अगर हम लोग प्रॉपरली इसको एनालाइज करते हैं, क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं। एंड इट इज फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। मतलब आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आपका क्लाइंट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ही कैन गेट बेनिफिट इन पीएसआई। वी जस्ट हैव टू एनालाइज हाउ वी कैन गेट इट। पर it is open for all manufacturing. They have restricted only for some sin goods, गुटखा, पान, बीड़ी वगैरह का आप करते हो तो उस केस में it is prohibited, and for some defense products they have prohibited, but otherwise for all manufacturing it is covered. In fact, in manufacturing, assembly units को भी they consider as a manufacturing. So आपका automobiles में बहुत बार होता है कि वो assembly units होती है। आज के टाइम पे आप EV में देखिए, EV में it is not manufacturing, mostly it is assembly units. आप हर पार्ट को लेके आते हो, assembly करके आप बना देते हो। So that is also considered as a manufacturing activities, and there are incentives for such kind of activities. Then टफ्स पॉलिसी अंडर पीएसआई, पीएसआई के अंडर ही एक ए जोन के अंदर भी, अपने बॉम्बे के आसपास में भी देयर इज सम इंसेंटिव फॉर एमएसएमईज। स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डिस्कस करूंगा कैसे हम लोग हमारे आसपास के एरिया में भी, इवन दो बॉम्बे इज इन द ए जोन, वी कैन टेक बेनिफिट बाय एडवाइजिंग आवर क्लाइंट टू टेक द बेनिफिट बाय कन्वर्टिंग इनटू वुमेन एंटरप्रेन्योर। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2016, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2018, CMEGP, PMEGP is there, Chief Minister Food Processing Policy, Maharashtra TUFS policy. So these are some of the incentives which state government is giving. सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम लोग देखते हैं तो नेशनल एग्री इंफ्रा फंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर भी देयर वाज एन इवेंट ऑन अ ग्लोबल लेवल, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का था। मोदी जी, उनका आर्टिकल भी था, आई वाज रीडिंग यस्टरडे ओनली इन द न्यूज़पेपर। सो एग्री इंफ्रा फंड ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड 50,000 करोड़ का उन्होंने फंड्स ईयर मार्क किया है फॉर एग्री इंफ्रा फंड, एंड दे आर गिविंग 3% इंसेंटिव। आपका बैंक इंटरेस्ट के अंदर 9% क्लाइंट को चार्ज होता है। देयर इज अ लिमिट, आप बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट नहीं ले सकते हो, बट अप टू 2 करोड़ यू कैन टेक 3% इंसेंटिव, आपका अकाउंट के अंदर वापस से क्रेडिट हो जाता है एवरी ईयर। पीएम किसान संपदा योजना, अगेन फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सेंट्रल में थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर ज्यादा इंसेंटिव्स है, दे हैव फॉर अदर सेक्टर्स आल्सो, बट इन एमएसएमई दे हैव लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग। तो अगर हमारे कोई क्लाइंट्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वी कैन सर्टेनली एक्सप्लोर फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज। NABARD subsidy for agri infra, APEDA subsidy for export of food processing, NHB, NHM subsidy, then cold storages. अगर कोई clients cold storages setup करता है तो there are a lot of incentives. हमारे बॉम्बे के पास में तलोजा वगैरह के अंदर there are a lot of food processing industries and cold storages भी वहाँ पे काफी है, so clients can get benefit. Now coming to the important scheme of package scheme of incentives 2019 of Maharashtra. फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसमें एक आपको बैकग्राउंड देता हूं। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट हु ब्रिंग इन दिस पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स, जो हम लोग स्टेट के इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं बेसिकली। सो फ्रॉम 1961 दिस स्कीम इज देयर। 1961 में कोई भी स्टेट की खुद की इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देता था इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, एमएसएमई में देता था, तो इट वाज देयर, बट स्टेट डिड नॉट हैड। सो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट हु क्रिएटेड दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1961। 61 से लेके आज तक कोई
स्कीम एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, हर 5 साल में वो उसको रिन्यू करते हैं विद सम चेंजेस, सम मॉडिफिकेशंस, बट इट इज गेटिंग रिन्यूड एवरी 5 इयर्स। लास्ट स्कीम थी वो 2013 में थी, ड्यू टू उनका कुछ एक्सटेंशन था, तो उन्होंने नेक्स्ट स्कीम 2019 में लेके आए। In 2019 scheme is applicable up to 2024, which is getting over, and we are hopeful 2024 के अंदर अगेन वो उसको अगले 5 साल के लिए रिन्यू करेंगे with some modifications। अगेन मैं आपको इसमें थोड़ा सा फिगर्स देता हूं। आज से 15 साल पहले खाली 5 या 6 स्टेट्स थे जिनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, and at a given point of time today 18 states are there who have their industrial policies। महाराष्ट्र को देखते हुए lot of states has given, UP is doing, बिहार is doing, अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो बिहार का काफी एडवर्टीजमेंट्स आता है। so states have felt the importance। जब तक आप MSMEs के लिए इंसेंटिव पॉलिसीज नहीं लेके आओगे, सब्सिडीज नहीं लेके आओगे, it would not be competitive, आपको उनको कंपटीशन देना ही पड़ेगा, you have to make them competitive। so states are coming up with their incentives policies। आज हम लोग हमारे आसपास में भी देखते हैं तो एवरी स्टेट हैज, गुजरात की दे हैव इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रॉम 2015, कर्नाटका हैज देयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राजस्थान दे केम इन 2015 अगेन देयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो एवरी स्टेट नाउ हैज देयर पॉलिसीज, एंड अदर स्टेट्स हु आर लुकिंग टू टैप द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दे आर गेटिंग ब्रिंगिंग देयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें यूपी बिहार लेटेस्ट एग्जांपल्स है। Budget allocated for PSI 2019 to 24 is 3,000 crore rupees they have allocated as a subsidy for MSME sector। Objective purpose, I think this we'll discuss certainly। मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड पे आता हूं तो अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कई बार वी हर्ड दैट बॉम्बे के आसपास में सब्सिडीज नहीं मिलती है। द रीजन बीइंग इन PSI 2019 दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर स्टेट इन 7 zones, A, B, C, D plus backward area and aspirational districts करके। so A zone what they consider is जो most developed है वो उन्होंने A zone में रखा है, जहां पे there are no incentives और very less incentives। बॉम्बे के आसपास का अपना जितना भी हम लोग वसई वाला एरिया देखते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, या फिर प्रॉपर ग्रेटर मुंबई का हम लोग बात करते हैं, एंटायर एरिया इज इन A zone, so there are very few incentives। पूना के आसपास में हम लोग बात करते हैं तो चाकन वगैरह 10 years back in 2007 पॉलिसी चाकन यूज्ड टू बी इन C zone, बट नाउ वहां पे भी काफी सारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री होने के कारण इट हैज बीन डेवलप्ड, सो दे हैव कन्वर्टेड दैट फ्रॉम C zone to A zone। देयर आर वेरी लेस इंसेंटिव्स। बट अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हाउ वी कैन क्रिएट वैल्यू यू नो टू आवर क्लाइंट्स। यहाँ पे देयर इज अ विमेन पॉलिसी, विमेन एंटरप्रेन्योर पॉलिसी, तो वो गवर्नमेंट हैज गिवन बेनिफिट फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपका MSME client, he is a women, that entity is a women entrepreneur, then in A zone also you can get the benefit of C zone। so C zone का मैं आपको खाली benefit बता देता हूँ। C zone they have a capital subsidy of 40% on the investment in land, building, plant and machinery। so कोई भी normal में अगर C zone में यूनिट लगाता है तो उसको 40% capital subsidy मिल जाएगा। now what they say is if your unit is women entrepreneur, then in A zone also we give you the benefit of C zone which is 40% subsidy। now take an example, वसई में अगर आपका कोई client यूनिट लगा रहा है और इट इज एन A zone, नॉर्मली में उसको नहीं मिलेगा, पर विमेन एंटरप्रेन्योर करते ही दे गेट 40% सब्सिडी इन दैट एरिया। ओनली द थिंग इज डेफिनेशन उन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योर का डिफाइन किया है, सो इट हैज टू बी 100% ओन्ड बाय विमेन। सो विच इज, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आपका प्रोप्राइटर शुड बी विमेन, पार्टनरशिप है तो ऑन पार्टनर शुड बी विमेन, सो इट इज ऑल, नॉट मेजॉरिटी और समथिंग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है देन ऑल शेयर होल्डर शुड बी विमेन। So again in private limited sometime it is आप shareholders women को बना दीजिए, directors you can keep male also, but that is not possible in partnership or proprietorship, वहां पे तो आपको एक ही रखना पड़ेगा। So if you make all the stakeholders women, then you can get the benefit of C zone also in E zone। so there are two conditions basically, one is this ownership and second is your more than 50% employees should be women।
सो हाँ करेक्ट, विमेन वाला एम्प्लॉय का भी है, पर उसमें कैसा होता है, दे हैव कंसीडर्ड जिस पे आप पीएफ ईएसआईसी आपके जो पेरोल पे एम्प्लॉयज होते हैं, दो शुड बी मोर देन 50% विमेन। कॉन्ट्रैक्ट में है दे विल नॉट वेरीफाई, कॉन्ट्रैक्ट वाले आपके कैसे भी रह सकते हैं। सो से आपके पास में 50 एम्प्लॉयज है, आपके पेरोल पे 20 एम्प्लॉयज हैं, सो 11 शुड बी लेडी, बाकी के 9 आपके पेरोल पे मेल रह सकते हैं, और आपका सपोज 30 जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ऑल 30 कुड बी मेल, देन आल्सो यू विल, सो दे कंसीडर पेरोल वाला जो एम्प्लॉयज रहता है। सो दीज आर द 2 कंडीशंस टू क्लासिफाई फॉर विमेन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने कोई क्लाइंट है वो बोलता है कि मेरे को यूनिट तो वैसे ही नहीं लगाना है, बट आई एम नॉट गेटिंग बेनिफिट, बट इफ ही इज कंफर्टेबल मेकिंग इट अ विमेन एंटरप्रेन्योर, देन ही कैन गेट बेनिफिट ऑफ 40% ऑफ सब्सिडी इन दिस एरिया। आप तलोजा लीजिए, अपने पास में हम लोग बैठे हैं, आप यू टेक द एग्जांपल ऑफ तुर्भे MIDC, so by advising clients on such kind of things we can certainly create value addition. सब्सिडी मिल के बाद चेंज कर देते हैं। हाँ, सो उसमें कंडीशन है, आफ्टर सब्सिडी दे हैव केप्ट कूलिंग पीरियड ऑफ 2 years, तो सब्सिडी का पीरियड 7 या 10 साल है। अगर आप 7 साल में हो तो आपको 9 साल तक उसको कंटिन्यू सेम उसी स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, देन यू कैन चेंज इट। Any? No, they have not kept qualification in this. Absolutely. So if it is a entrepreneur, then whatever it is, no qualification. So this was one thing. Again मैं आपको और 2 पॉलिसीज के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे हम लोग अपने बॉम्बे के आसपास के एरिया में, जिसको हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि ए जोन है, यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल सकता, बट वी कैन टेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2018। ईवी में उन्होंने ये दिया है कि आप ए जोन में भी लगाओ, हम लोग आपको सी जोन का बेनिफिट देते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे आसपास का जितना भी एरिया, अगर मैं पूना का एग्जांपल देता हूं, जो चाकन के अंदर यूनिट्स लगाते हैं, ऑलरेडी वहां पे ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा हब बना हुआ है। वहां पे कोई या तो ईवी मैन्युफैक्चर करता है, या ईवी के पार्ट्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज ए ईवी इंडस्ट्री। सो उसके पार्ट में बैटरीज बना रहा है, उसकी लाइट बना रहा है, बट दो शुड बी सप्लाइड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ओनली। सो इफ यू पुट अ यूनिट ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरिंग इन ए जोन आल्सो, यू गेट द बेनिफिट ऑफ सी जोन व्हिच इज 40% सब्सिडी। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे कोई क्लाइंट सेटअप कर रहे हैं, से समवन इज गोइंग, वी कैन एडवाइज देम, इफ यू आर सप्लाइंग टू, सो वी कैन गेट योर सब्सिडी। पहले तो हम लोग उसको एडवाइस करें कि आप सी जोन डी जोन में डालिए, अगर वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, सो इन ए जोन आल्सो ही कैन टेक सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स। अब मैं आपको इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, हाउ वी कैन एडवाइज आवर क्लाइंट। बॉम्बे के पास का एरिया वाड़ा इज जस्ट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस, but WADA is in D+ zone, 60% कैपिटल सब्सिडी। वाड़ा डी जोन में क्लासिफाई होता है, बॉम्बे से खाली 70-80 किलोमीटर है, 1.5 से 2 घंटे का हमारे यहाँ से ड्राइव है। आप वहां पे यूनिट्स लगाइए, इट इज स्ट्रेट 60%। आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सबका मिला के जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6 करोड़ का सब्सिडी आपको वाड़ा में मिलता है। ठीक है, वहां के एरिया के थोड़े से लेबर वगैरह के चैलेंजेस है, बट इफ समवन कैन हैंडल दोस चैलेंजेस, एंड वी हैव सीन इन लास्ट 10 years लॉट ऑफ यूनिट्स, हमारे भी काफी क्लाइंट्स की यूनिट्स। यस, तो कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा, पर इट विल बी रिजॉल्व आई थिंक। जैसे जैसे वहां पे इंडस्ट्रीज आती जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, सो पीपल वुड, आपने लोकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया तो दोस थिंग्स वुड सर्टेनली बी सेटल्ड। गवर्नमेंट का पर्पस इसीलिए उन्होंने बॉम्बे के पास में होते हुए भी वाड़ा को D+ जोन में रखा है, दे वांट टू गेट इट डेवलप्ड। क्या वसई में तो ऑलरेडी, वसई इज द नंबर 1 तहसील तालुका इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, लेट मी टेल यू। तो वो चाहते हैं कि ठीक है आप डालिए, पर हम आपको यहाँ पे इंसेंटिव नहीं देंगे, वाड़ा में जाइए हम आपको इंसेंटिव देते हैं। मेरे क्लाइंट के साथ में हुआ, दे आर इनटू फ्रूट जूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दे वर लुकिंग फॉर अ यूनिट नियर टू वसई। उन्होंने वहां पे लैंड ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी कर दिया था। दे रेगुलरली टेक एडवाइस फ्रॉम हस, दे आर नॉट फ्रॉम मुंबई, उनका ऑलरेडी 5-6 जगह अक्रॉस इंडिया प्लांट्स है, दे आर फ्रॉम यूपी। बहुत ज्यादा उनको यहाँ का एरिया का आइडिया नहीं था, हमने फिर उनको एनालाइज करके बताया कि सर आप बाकी के पॉइंट्स देखिए, आपको वाटर अवेलेबिलिटी, क्योंकि इन फ्रूट जूस प्रोसेसिंग आपको पानी का काफी रिक्वायरमेंट रहता है। मार्केट के लिए देखिए, अगर आप वसई तक जा रहे हैं, वहां से अगर आधा पौन घंटा, 20 से 25 किलोमीटर है, पर आपको आधा पौन घंटा आगे वाड़ा तक जाने में लग जाता है। अगर उतना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हैं और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो यू शुड पुट यूनिट इन वाड़ा। आपको 60% का कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगा। वसई में आपको 0 सब्सिडी है।
प्लस फूड प्रोसेसिंग के लिए देयर इज एडिशनल 20%, तो 60 प्लस 20 80% सब्सिडी। नॉर्मल में 60 है, फूड प्रोसेसिंग के लिए दे हैव गिवन एडिशनल 20% सब्सिडी। सो उनके लिए लैंड भी, यहाँ पे समझिए आप, उनके लिए लैंड भी सस्ता हो गया। वसई में लैंड इज मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू वाडा। हाँ, आपको बाकी सब चीजें एज एंटरप्रेन्योर यू हैव टू एनालाइज, आपका रॉ मटेरियल आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता है, लेबर पावर अवेलेबिलिटी, फिनिश्ड गुड्स मार्केट आपका पास में है, पर उनका लिए मार्केट वाज दे वर लुकिंग फॉर बॉम्बे पुणे एज अ मार्केट। सो वसई में जाए या वाड़ा में जाए, उनके लिए बहुत ज्यादा कोई ट्रांसपोर्टेशन वाज नॉट अ मैटर। सो लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग, अगेन आई कैन गिव एग्जांपल, सम चिप्स मैन्युफैक्चरर्स आर देयर who are our clients। उन्होंने वाड़ा में विक्रमगढ़ में यूनिट लगाया एंड दे आर टेकिंग 80% कैपिटल सब्सिडी। दैट इज हाउ दे आर कंपीटिंग विद द बिग नेम्स ऑफ, हम लोग चाहिए लेस का नाम लें या बालाजी का नाम लें, उनके साथ में दे आर कंपीटिंग। द रीजन बीइंग उनको काफी कैपिटल इंसेंटिव सब्सिडीज वहां पे मिलते हैं। सो दीज काइंड ऑफ वैल्यू एडिशंस वी कैन गिव टू आवर क्लाइंट्स। अब हम लोग सब्सिडी के बारे में बात करेंगे। आपको इनिशियल स्टेजेस पे जब आप लैंड परचेज करते हो, उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी जो लगता है, अपने महाराष्ट्र में 5% का स्टैंप ड्यूटी लगता है। दे हैव गिवन वेवर ऑफ दैट 5% स्टैंप ड्यूटी आल्सो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा एंगेजमेंट कब से होता है, जब से वो प्लानिंग कर रहा है, लैंड परचेज करने से लेके उसको सब्सिडी दिलाने से लेके। एंड पीएसआई यू डजंट गेट इन सिंगल ट्रांच, यू गेट इट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 years। तो आपका उसके साथ में 10 साल का एंगेजमेंट हो जाता है, 7 साल का एंगेजमेंट हो जाता है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो अच्छा काम कर रहा है 7 या 10 साल में कोई भी 1 या 2 एक्सपेंशन तो कर ही लेगा। अगर एक्सपेंशन में गया तो अगेन योर प्रोफेशनल सर्विसेज स्टार्ट विद हिम फॉर नेक्स्ट 7 to 10 years। एंड सब्सिडी इज देयर फॉर एक्सपेंशन ऑल्सो। So these are the opportunities हमारी बाकी प्रैक्टिस के साथ में we can give a value addition to our clients। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन की भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, बट we can certainly and practically हम लोग हमारे क्लाइंट्स के साथ में कर रहे हैं। I mean this practice from last 10 to 12 years, और हमारे क्लाइंट्स ने सेकंड और थर्ड एक्सपेंशन भी कर लिया है in this time, and we are continuously working on it। हाँ सर, ये मैं डिस्कस करूंगा। बैंक लोन का उन्होंने कंपल्सरी नहीं बोला है, पर उन्होंने कुछ 1-2 क्लॉज डाले हैं जहां पे आपको शायद लेना पड़ जाएगा। सो दे हैव नॉट मेड इट कंपल्सरी, बिना बैंक लोन के भी आप कर सकते हैं, बट विल डिस्कस ऑन दोस 2 पॉइंट्स। मैं आपसे डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर। अब हम लोग थोड़े से की फीचर्स ऑफ पीएसआई 2019 डिस्कस कर लेते हैं। अवेलेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन हाईलाइट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन लैंड ऑल्सो। लैंड के ऊपर भी आपको सब्सिडी है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वो लोग लैंड को एक्सक्लूड करते हैं, या फिर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो भी देखते हैं वहां पे वो लोग या तो बिल्डिंग या फिर ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे आपको सब्सिडी देते हैं। बट इन महाराष्ट्र पीएसआई दे आर गिविंग सब्सिडी ऑन एंटायर इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अगेन आपको कोई क्लाइंट था, उसने 40 करोड़ का मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया, 50 करोड़ का लैंड और बिल्डिंग के अंदर है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही इज एमएसएमई, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिलो 50 करोड़, पर टोटल इन्वेस्टमेंट इज 40 + 50 90। नाउ ही गेट सब्सिडी ऑन द एंटायर 90 करोड़ रुपीस। अगर आपने सपोज वाड़ा में यूनिट डाला 60% है, तो 54 करोड़ का आपको सब्सिडी यू गेट ऑन सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन महाराष्ट्र इट इज अ सब्सिडी ऑन इन्वेस्टमेंट इन एंटायर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड इज समथिंग आई वांटेड टू, हाँ नहीं सर, सेकंड हैंड का उन्होंने अलाउ नहीं किया है। ओनली इन केस ऑफ इंपोर्टेड रिफर्बिश्ड का उन लोगों ने अलाउ किया है, बट नॉर्मल में सेकंड हैंड इज नॉट अलाउड। अवेलेबल फॉर न्यू एज वेल एज एक्सपेंशन। सो मैंने आपको ये बताया कि आपका न्यू यूनिट पे भी मिल सकता है, या फिर आप अगर एक्सपेंशन कर रहे हो तो इन एक्सपेंशन ऑल्सो देयर आर सम कंडीशन फॉर एक्सपेंशन। एटलीस्ट आपका उतना फ्रेश इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो दे हैव केप्ट 3 कंडीशंस व्हिच वी विल डिस्कस। एंटायर महाराष्ट्र दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन 7 जोन्स, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। विल सी कि कौन कौन से तालुका आपकी कौन से जोन में आ रही है। सो A, B, C, D, D+ नो इंडस्ट्रियल एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई हैड अ प्रेजेंटेशन इन सूरत 3 months बैक। वहां का ब्रांच के अंदर दे हैड कॉल्ड अस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूरत में अगर आपके कोई रिलेटिव्स या क्लाइंट्स वगैरह रहेंगे, आप बात कीजिए, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन नंदुरबार करके एक एरिया है, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है, नवापुर करके एरिया है। I think 80 to 100 textile units have been set up in last 4 to 5 years in that area.
हम लोग जब सूरत में बात करते हैं कि व्हाई दिस नंदुरबार, सो पीपल आर सेइंग बाकी सब गुजरात में बढ़िया है, पर फ्रॉम इंसेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू विच हम लोग ने भी अपने केस में एक एनालाइज किया था, महाराष्ट्र स्टेट इज द गिविंग मोस्ट इंसेंटिव्स और सब्सिडीज टू इट्स एमएसएमईज, बाकी के सब स्टेट में यहाँ से कम है। अगर मैं गुजरात को कंपेयर करता हूँ ब्रॉड लेवल पे, सो गुजरात इज गिविंग 20% ऑफ सब्सिडीज व्हाट वी आर गेटिंग इन महाराष्ट्र। अगर आपको महाराष्ट्र में 100 रुपए का सब्सिडी मिलता है, गुजरात के अंदर उसके सामने आपको 20 रुपए का सब्सिडी मिलता है। सो टू मेक देयर यूनिट्स कॉम्पिटिटिव, लॉट ऑफ सूरत टेक्सटाइल यूनिट्स दे आर पुटिंग देयर यूनिट इन नंदुरबार नवापुर एरिया। रीजन बीइंग वो बोल देंगे हम लोग को आज भी यूनिट के लिए सिटी में तो रख नहीं सकते हैं, 1-1.5 घंटा तो हम लोग को सिटी से ट्रैवल करना ही पड़ता है। वहां से अगर आप 45 मिनट्स और ट्रैवल करते हो तो यू कम टू महाराष्ट्र और आप नवापुर एरिया में आ जाते हो। इन नवापुर इट इज इन एस्पिरेशनल, जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है उसमें फॉल करता है, एंड देयर इज 100% कैपिटल सब्सिडी इन नवापुर। अगर किसी ने वहां पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया, यूनिट लगाया, सो दे गेट 100%। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ का सब्सिडी। इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दैट इज श्योर, आपको एक साथ नहीं मिलेगा, बट यू गेट सब्सिडी ऑफ 10 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो दैट इज द रीजन हाउ, सो दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी कैन आइडेंटिफाई। हम लोग कई बार क्लाइंट्स को एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप इस एरिया में अगर आपके लिए फिजिबल होता है आप जाइए। इचलकरंजी का जो हम लोग बात करते हैं टेक्सटाइल हब है, अगेन दैट एरिया फॉल्स अंडर D+ जोन, तो वहां पे भी आपको काफी 60% ऑफ कैपिटल सब्सिडी यू आर गेटिंग फॉर MSME यूनिट्स व्हाटएवर। हाँ, भिवंडी का मैं डिस्कस करूंगा। भिवंडी में कुछ एरिया उन्होंने A जोन में रखा और कुछ C जोन में रखा है, सो नेक्स्ट स्लाइड्स में विल डिस्कस भिवंडी इज देयर। Subsidies over a period of 7 to 10 years, and this is not credit link, जो आपका क्वेश्चन था। बैंक लोन कंपलसरी नहीं है, पर कुछ चीजों को कंप्लाई करने के लिए इट इज एडवाइजेबल टू टेक बैंक लोन, एंड इट इज बैक एंडेड सब्सिडी। आपको शुरू में नहीं मिलता है, शुरू में तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट रहेगा या तो आपको या बैंक को लेके आना पड़ेगा, देन यू विल गेट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 years। नहीं सर, वेयर हाउसिंग इसमें कवर्ड नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। कोल्ड स्टोरेजेस 2013 की पॉलिसी में उन्होंने कवर किया हुआ था, बट नाउ इन 2019 दे हैव रिमूव्ड इट। खाली वो बोलते हैं कि अगर आपका इंटीग्रेटेड, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो, उसके साथ में अगर आपने कोल्ड स्टोरेज लगाया है, देन दे विल गिव बेनिफिट ऑन द एंटायर प्रोजेक्ट, बट स्टैंड अलोन कोल्ड स्टोरेज दे विल नॉट गिव, सो दे हैव रिमूव्ड इट। हमने लिया था बारामती में, आई हैड ए क्लाइंट, सो 2013 का पॉलिसी में वी हैड टेकन ऑन स्टैंड अलोन कोल्ड स्टोरेज, प्रोवाइडेड आपको उसमें, सो इन दैट केस एनी कोल्ड स्टोरेज वाज एप्लीकेबल, सो वी हैड टेकन ऑन दैट, एंड दे वर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। 2019 के बाद में उन्होंने जो भी किया, सो दे कुड नॉट गेट इन दिस पॉलिसी, बट हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है किसान संपदा फॉर कोल्ड चेन, इन दैट यू कैन टेक बेनिफिट। अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, डेफिनेशन ऑफ MSME। अभी हम लोग ने शायद शुरू में एक दूसरा डेफिनेशन जो चेंज होके आया था पढ़ा था, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, जो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं कैसे प्ले करता है, सो दैट इज हाउ ब्यूरोक्रेसी प्लेज रोल ओवर हियर। सो इन PSI 2019 they still follow the old definition of MSME 2006 एक्ट का था। रीजन ये है, कभी हम लोग भी बात करते हैं डिपार्टमेंट में कि नाउ इट हैज बीन चेंज, 2020 में था, आज तो अपन 2023 में बैठे हैं, 3 साल कंप्लीट हो गया है। सो व्हाट दे से इज, हम लोग का प्योर है GR के बेसिस पे जाते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस दिन GR निकाला उस दिन हम लोग उसको चेंज करेंगे। वी हैव नॉट रिसीव्ड GR फ्रॉम आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सो दे आर स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ MSME। सो इन दिस केस वी हैव टू ड्यूरिंग एडवाइजिंग द क्लाइंट्स, वी हैव टू फॉलो द old definition wherein investment plant and machinery माइक्रो 25 लाख तक का, स्मॉल 25 से 5 करोड़ तक का, मीडियम 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का। सो ऊपर वाले जो मैंने तीनों क्राइटेरिया डिस्कशन किए, दोज आर अगेन इन्वेस्टमेंट इन ओनली प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग आपका उसके ऊपर कितना भी रहेगा वो चलेगा, सो यू वुड बी क्लासिफाइड। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ का है, लैंड बिल्डिंग में एडिशनल 20 करोड़ का है, तो आपको 30 करोड़ की सब्सिडी मिल जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 2019 में पॉलिसी आई थी, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया MSME का डेफिनेशन लेके नहीं आए थे, बट दे वर स्लाइटली प्रोएक्टिव। उनको लगा कि MSME में, सो इन स्टेट गवर्नमेंट दे हैड क्रिएटेड they have created a new category in 2019 when policy came, so they said ठीक है, आपका 10 करोड़ के ऊपर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पर अगर आपका FCI
इन एफसीआई दे कंसीडर एंटायर लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, वो विद इन 50 करोड़ रहता है, देन ऑल्सो विल कंसीडर यू एज एमएसएमई एंड विल गिव यू द बेनिफिट। सो इन दिस केस अगर यहाँ की डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं, आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट सपोज 20 करोड़ का है, यू हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 10 करोड़ रुपीस, बट प्लांट एंड मशीनरी में 20 करोड़ का है, लैंड और बिल्डिंग के अंदर आपका अगेन 30 करोड़ का है, सो यू आर विद इन दैट न्यू डेफिनेशन ऑफ 50 करोड़, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ PSI 2019। सो ये थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ PSI हम लोग को रिवर्क करते हैं, दैट इज हाउ वी नीड टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल द पॉलिसीज जो चलती रहती हैं। सो व्हेनेवर GR कम्स देन वी विल फॉलो द न्यू डेफिनेशन ऑफ जो सेंट्रल का आया है, बट टिल द GR कम्स वी हैव टू एडवाइस आवर क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो सर व्हाट दे से इज स्टेट वाले सब GR के बेसिस पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग को जब तक यहाँ से GR नहीं आएगा ना विल नॉट गिव। That is fine, but this is how bureaucracy. गवर्नमेंट के इंसेंटिव है ना। Yes, yes. So, मीडियम इंडस्ट्री के लिए कोई लिमिट तो नहीं है कि 10 करोड़ तक की बेनिफिट मिले? It will be full. सब्सिडीज जैसे मैंने आपको बताया, आपने अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में है, 50 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग में है, तो आपको 60 करोड़ के ऊपर अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको पूरे 60 करोड़ पे 60 करोड़ का सब्सिडी But करनी। to cross the limit of 10 crore, that was the definition. हाँ, But you are saying that still it is covered. If it is like 20 crore is in planted. so that is because of this new category they have created. अगर आप न्यू से भी क्रॉस कर जाते हैं then you will not get on the additional, आप जो नए इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, दिस इज अगेन टेक्निकल न्यू यूनिट कौन सा है, सो आई थिंक उस पर बहुत ज्यादा यस यस श्योर। मैंने बताया कि थोड़ा सा PSI इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इस पे टाइम स्पेंड करते हैं। PLI अगेन देयर आर 14 स्कीम्स, हर स्कीम अपने आप में सेपरेट है, और सो विल गिव थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट तो दूंगा, पर एक एक सेशन चाहिए अपन को एक एक सब्सिडी कवर करने के लिए। PSI इज समथिंग इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांट टू डिस्कस, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। अच्छा अच्छा, अगेन टू टेक द बेनिफिट ऑफ PSI 2019 व्हाट दे से इज, ये 4 इफेक्टिव स्टेप्स हैं, इनमें से कोई भी एक अगर आपने 2019 से लेके 2024 के बीच में किया देन यू विल गेट द बेनिफिट, व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कंपनी LLP, इफेक्टिव पोजेशन ऑफ लैंड, उद्यम रजिस्ट्रेशन या MPCB कंसेंट टू एस्टैब्लिश, अगर इनमें से कोई भी आपने लिया देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ PSI 2019। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ने डिस्कशन कर लिया, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी कंसीडर करते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। Again very apt example from our practical experience, मेरे क्लाइंट ने टर्म लोन लिया था, and we all know that interest during construction period is you can capitalize it, that is also becoming part of the project cost and you can take subsidy on that interest paid on term loan. R&D expenses you can cover. So these are the industries basically, thrust sectors में एक बार को जो जिसके ऊपर they give for all manufacturing but they have defined some thrust sectors, EV, aerospace and defense manufacturing, textile, sports, gym, biotechnology, agro food processing, जिसपे central भी काफी incentives दे रहे हैं, state is also giving. Now coming to this zone जो हम लोग ने, ये थोड़ा सा important है, हम लोग इस पे time spend कर लेते हैं। Pardon? Trial products. ट्रायल प्रोडक्शन का अगर आप बिलिंग रेज करते हो तो आपका कवर्ड हो जाएगा, मतलब अगर आपने उसका बिल रेज नहीं किया है देन, बट आई थिंक नाउ यू हैव टू रेज द इनवॉइस, व्हाटएवर इनवॉइस यू आर रेजिंग दैट वुड बी कवर्ड। बट आप ट्रायल तो हमेशा तो करते नहीं रहोगे, शुरू में 1 या 2 कंसाइनमेंट आपके लिए ट्रायल प्रोडक्शन रहेगा, देन यू हैव टू कम फॉर द यस। हाँ, सो कमर्शियल प्रोडक्शन अगर आपने उसका इनवॉइस रेज किया है देन दैट वुड बी कवर्ड। नाउ हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ABCD+, देन विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग 80% एंड एस्पिरेशनल जिसमें मैंने नंदुरबार को अगेन जो हम लोग ने एग्जांपल डिस्कस किया 100%। सो बॉम्बे के आसपास के एरिया ए जोन में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलता है, बट वी डिस्कस विमेन एंटरप्रेन्योर, EV, इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी महाराष्ट्र का, उसमें भी आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, इन ए जोन यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सी जोन, या फिर हम लोग थोड़ा सा B-C जोन में अगर मूव करते हैं, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, वी कैन गेट द इंसेंटिव्स।
ये हम लोग ने डिस्कशन किया। फूड प्रोसेसिंग के लिए एडिशनल 20%, सो कहीं पे आपको 60 मिलता है तो आपको 80 हो जाएगा, जहां पे आपको 80 मिल रहा था वहां आपको 100 हो जाएगा, पर यू कैनॉट क्रॉस 100, जहां पे 100 मिल रहा था वहां आपको 100 ही मिलेगा। नाउ क्लासिफिकेशन फ्रॉम हमारे आसपास के एरिया, ग्रेटर मुंबई, एंटायर ग्रेटर मुंबई कम्स इन ए ग्रुप, उसमें कोई बी सी डी डी प्लस में नहीं है। थाने में थाने, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, दीज आर इन ए, पर भिवंडी में certain villages are there which are in C zone. So what they have made here is MMR करके अपना मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। सो भिवंडी के कुछ विलेजेस है वो आपके विद इन MMR आते हैं, which they says is those are developed villages, वहां पे आपको उन्होंने A जोन में डाल दिया है, एंड द विलेजेस which are outside MMR उनको उन्होंने C जोन में रखा है। इन C zone you can get incentive of 40% in भिवंडी also. अगेन मैं आपको अपने पास के एरिया का एक एग्जांपल देता हूं। वी हैव क्लाइंट इन मुरबाड। मुरबाड यहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पे है। पिछले आई थिंक 3 साल पहले दे हैव ब्रिंग इन द एडिशनल MIDC आल्सो इन मुरबाड, सो डिमांड इज देयर, एंड इन मुरबाड इट इज बी जोन, यू कैन गेट 30% कैपिटल सब्सिडी वाटर इन्वेस्टमेंट। योर क्लाइंट, वहां पे काफी सारे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर देयर, एंड वी कैन एडवाइज टू आवर क्लाइंट्स आल्सो, अगर कोई मुरबाड में यूनिट डालता है यू कैन गेट 30% कैपिटल सब्सिडी। ये तो हम लोग ने। नाउ कमिंग टू पालघर, वसई पालघर इज इन ए बट दहानू इज इन बी अगेन। दहानू में अगर कोई यूनिट डालता है दे कैन गेट कैपिटल सब्सिडी ऑफ 30%। नाउ कमिंग टू डी प्लस, जवार, मोखाड़ा, तलासरी, वाड़ा, वाड़ा इज इन डी प्लस। विक्रमगढ़, सो वहां पे अगर कोई भी यूनिट डालता है वी कैन गेट 60% कैपिटल सब्सिडी, प्लस अगर फूड प्रोसेसिंग हो गया तो उसमें एडिशनल 20%। रायगढ़ में भी देर आर सर्टेन एरियाज विच आर इन ए बी में मैं आपको थोड़ा सा अगेन अपने बॉम्बे के पास में सुधागढ़ करके तालुका है। हम लोग पुणे जाते हैं, खपोली जो अपना फर्स्ट टोल आता है, फर्स्ट टोल से आप इमेजिका एडलैब्स राइट टर्न लेते हैं। इमेजिका के बाद में 4 या 5 किलोमीटर बाद में सुधागढ़ तालुका स्टार्ट हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर देयर, पीपल हैव पुट इन, और वो पूरा एरिया आपका बी जोन में आता है। देयर इज अ 30% कैपिटल सब्सिडी। सो अगेन बॉम्बे के पास में है, वी कैन एडवाइज, लैंड भी आपको शायद सस्ता मिल जाता है। बाकी चीजों में अगर आप कॉम्पिटिटिव हो, आपका क्लाइंट, ही कैन दैट एरिया इफ इट इज वायबल फॉर हिम। एक्सपोर्ट का अगर आप देखोगे तो JNPT पोर्ट आपको काफी पास में मिल जाता है। So all these things can be advised. Then Karjat, Mahad, Mangaon, Mahad, again chemical zone. There are a lot of factories in Mahad area. Bombay से 4-5 घंटे की दूरी पे है, पर it is again a chemical zone, C zone में आता है। 40% we have clients in that area. And in fact, I can tell you in Mahad there is a lot of foreign FDIs also coming. There are a lot of foreign companies who are investing, and this subsidy is for everyone. आपका Indian के लिए भी है, foreign के लिए भी है। So whoever make investment in India, they can get it. And we have live example and of our clients who are in the chemical sector, उनके units महाड़ के अंदर है। There is MIDC also where you can get. अच्छा friends, one more important thing, महाराष्ट्र के अंदर सब्सिडी, it is not compulsory that unit has to be in MIDC area only. You can set up the unit outside MIDC also, then also you can get the subsidy. So there is no restriction कि आपका खाली MIDC नहीं होना चाहिए, outside MIDC भी हो सकता है। प्राइवेट लैंड, खाली इसमें 3-4 कंडीशंस हैं जो कि अभी काफी रिजॉल्व हो गया, बट स्टिल पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम। कई लोग क्या होते हैं MSME के अंदर, लार्ज कॉर्पोरेट्स को तो आइडिया रहता है, वो लोग उसको कंप्लाई करके चलते हैं। MSME समटाइम दे गो विद ग्राम पंचायत की अप्रूवल के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यूनिट चालू कर लेते हैं, बट लेट मी टेल यू इट इज नॉट अ वैलिड फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इट इज नॉट अ वैलिड परमिशन। पर लोग चालू कर लेते हैं, 3-4 साल बाद में उनको हैवी पेनल्टीज पे करना पड़ता है, दे पे एंड दे लूज द बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज ऑल्सो। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली, मैं कई बार देखता हूँ, हमारे पास भी केसेस आते हैं जहां पे लोग स्टार्ट कर लेते हैं, पर फिर वो बोलते हैं कि हमारा तो ग्राम पंचायत अप्रूवल। मैंने कहा इन दैट केस यू कैन नॉट गेट सब्सिडीज। सो टू गेटिंग सब्सिडीज PSI महाराष्ट्र में 3-4 इंपॉर्टेंट थिंग है। वन इज योर लैंड हैज टू बी NA, सेकंड इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय टाउन प्लानिंग व्हिच इज कलेक्टर अप्रूव्ड। आपका बिल्डिंग प्लान हो, छोटे से छोटा यूनिट हो, यू नीड टू टेक इट, collector approval is must, town planning ka, so that is the only authority. Third is MPCB consent to establish and consent to operate, which is very important. लोग शायद अपने MSME clients होते हैं उसको कई बार इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बोलते हैं हम लोग पोल्यूशन नहीं कर रहे तो हमको जरूरत नहीं है। बट इन MPCB they have created 4 categories, white, green, orange, red करके। So if you are not doing it also you have to take the certificate under white. So in PSI वो सब्सिडी देने से पहले आपसे ये 3-4 चीजें कंफर्म करेगा, whether you have NA land,
it has to be town planning approved, it has to be MPCB consent to establish and consent to operate, then only. So अगर हम लोग क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि बॉस आपने आज ग्राम पंचायत का अप्रूवल पे यूनिट डाल लिया है, 4 साल बाद में यू हैव टू पे इंटरेस्ट पेनल्टी फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट लैंड फ्रॉम ग्राम पंचायत टाउन प्लानिंग, वो भी आपको देना पड़ेगा, साथ में आपको जो सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा था दैट आल्सो यू आर लूजिंग. सो सी व्हाट प्राइस यू आर पेइंग बाय नॉट कंप्लाइंग विद द लॉ. और आज आपने कंप्लाई किया तो यू हैव टू पे व्हाटएवर द गवर्नमेंट चार्जेस टू कन्वर्ट दैट इनटू टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड बिल्डिंग, एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज आल्सो. रत्नागिरी में भी देयर आर लॉट ऑफ एरियाज व्हिच आर इन D+. सिंधुदुर्ग, अगर फूड प्रोसेसिंग की वहां पे काफी यूनिट्स, अपने कोई क्लाइंट्स है, देयर आर लॉट ऑफ कैशो जो कि अपना कोंकण एरिया आता है, वहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आर लॉट ऑफ यूनिट्स आर देयर. ना आपको इंसेंटिव क्या क्या मिलता है. सो अभी मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल में आ जाते हैं. यू हैव लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने नंदुरबार के अंदर टेक्सटाइल यूनिट लगाया, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, आपको 10 करोड़ का सब्सिडी मिल जाता है, कैपिटल सब्सिडी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स. एवरी ईयर डिवाइड बाय 10, 1 करोड़ का आपको सब्सिडी मिलेगा. इन PSI अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड इन योर अकाउंट डायरेक्टली. मतलब गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है इट इज अ रिफंड ऑफ GST, और they have linked it with certain things. The reason being उसको लिंक करने का, they want to see that your unit is running. इसके लिए उन्होंने GST, बैंक इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ से लिंक किया है. सो बट इट इज नॉट रिफंड ऑफ दोज थिंग्स, इट इज अ कैपिटल सब्सिडी. एवरी ईयर आपके ईयर अकाउंट में आता है. यू जस्ट नीड टू सबमिट अ क्लेम. उस क्लेम के अंदर क्या क्या है. वन इज स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन परचेज ऑफ लैंड. आपका इंगेजमेंट देखिए क्लाइंट के साथ में, जिस टाइम पे वो प्लानिंग कर रहा है, आप अगर उसी टाइम पे उसके साथ में इंगेज हो गए, आपने लैंड परचेज के टाइम पे जो भी 5% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, यू नीड नॉट टू पे दैट स्टैम्प ड्यूटी. खाली 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस पे कीजिए. इन माय केस वी हैव सेव्ड 20 लाख रुपीस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट हु पुट अप अ यूनिट इन सतारा, जो मैं आपको स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल दिया था. सो दैट क्लाइंट पुट अप देयर यूनिट इन सतारा फॉर फोम वर्क एंड दे सेव 20 लाख रुपीस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. खाली 30,000 रुपए के अंदर उसका लैंड का रजिस्ट्रेशन हो गया. एंड इट इज हैपनिंग. आपका एंगेजमेंट तब से स्टार्ट हो जाता है. देन यू एडवाइज ऑन PSI. एवरी ईयर आपका एंगेजमेंट स्टार्ट होता है. सो वन इज स्टैम्प ड्यूटी, सेकंड इज SGST पेबल ऑन टोटल सेल्स. सेल्स के ऊपर आपका जो SGST, अगेन ऑन महाराष्ट्र में इट इज ग्रॉस बेसिस. इन सम अदर स्टेट्स, गुजरात का जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आपको सब्सिडी एलिजिबल तो हो जाते हैं पर आपको मिलता नहीं है. उसका रीजन है वहां पे उन्होंने नेट बेसिस पे किया हुआ है. आपको इनपुट लेस करना है, आपने गवर्नमेंट को पे किया है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर बास्केट. बट इन महाराष्ट्र इट इज ऑन ग्रॉस बेसिस. आप अपना इनपुट वगैरह लेते रहिए, GST का आपको पे करना आता है तो पे कीजिए, नहीं कीजिए. पर फॉर दिस बास्केट कैलकुलेशन सब्सिडी दे हैव कंसीडर्ड ऑन अ ग्रॉस बेसिस. SGST आपने जितना भी पे किया है उसको आप बास्केट का पार्ट बना लीजिए. थर्ड इज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन. 5% का इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन. लेट्स टेक एग्जांपल. अब मैं आपको यहाँ पे I'll give you फूड प्रोसेसिंग का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दो सब्सिडीज को कैसे अपन कंबाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं. मैंने आपसे डिस्कशन किया था, सेंट्रल का एक एग्री इंफ्रा फंड करके है, 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी है. 5% का आपको यहां से आता है PSI के अंदर. आपके क्लाइंट ने अगर 10% पे लोन लिया है, उसको अगर दोनों का बेनिफिट मिल गया तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%. PSI में आपको 5% मिल गया, वहां पे आपको 3% मिल गया. वहां पे लिमिट है अप टू 2 करोड़ यू कैन टेक द बेनिफिट. आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा भी रहेगा, बट दे इन एग्री इंफ्रा फंड दे हैव केप्ट इट विद अ कैप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, विद अ कैप ऑफ 2 करोड़ रुपीस, बट यू कैन टेक कंबाइंड बेनिफिट. So in PSI, stamp duty, SGST, interest on term loan. Fourth is electricity tariff. टैरिफ के ऊपर 1 रुपी पर यूनिट. एंड इन सम एरियाज, जो विदर्भ वाला एरिया हम लोग डिस्कशन करते हैं, वहां पे 2 रुपीज पर यूनिट है. एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन. बिल में जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है इन महाराष्ट्र, आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, जोन में अपना एक क्लाइंट का बिल देखेंगे, पहले 9.1% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हुआ करता था, अभी वो बिल में 7.5% आता है. तो जो भी आपका पीरियड है 7 साल या 10 साल का, उस पीरियड तक आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिल में नहीं लग के आएगा. दैट इज अगेन अ बेनिफिट फॉर आवर क्लाइंट. ए जोन के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सो यू कैन नॉट गेट द PSI का जो 40 या 30% का सब्सिडी है, बट दे हैव केप्ट सम 25 लाख रुपीस ऑफ सब्सिडी विच इज अ मिनिमल. बट स्टिल अगर आपके क्लाइंट ने एक्सपेंशन किया, इट इज ओनली फॉर एक्सपेंशन, नॉट फॉर द न्यू यूनिट.
5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे दे गिव 5% टफ्स बोल के उसको सब्सिडी देते हैं इन पीएसआई, एंड इट इज विद अ कैप ऑफ 25 लाख रुपीस। तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो 5 करोड़ का अगर उसने प्लांट एंड मशीनरी में एक्सपेंशन में किया है तो उसके बाद 5% के हिसाब से 25 लाख रुपए का वन टाइम सब्सिडी है, एक साथ आपको अकाउंट में पैसा आ जाता है। एंड आवर क्लाइंट हैव गॉट इट, दे हैड अ यूनिट फॉर, अगेन जो हम लोग ने डिफेंस वाले का बात किया है, दे हैड अ यूनिट नियर पुणे इन ए जोन। उनको बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट दे हैड मेड अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अराउंड 5.5 crores and they got this 25 lakh rupees entire. I think we are running slightly short of time. Yes, sure. Pardon? हाँ, so टफ्स का जो हम लोग ने बात किया 5% का है, पर नो इट इज नॉट टेक्सटाइल, इट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। यहाँ पे ये लोग जो पीएसआई में बात करते हैं, इट इज नॉट ये टेक्सटाइल वाला टफ्स नहीं है, इट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये पीएसआई का ही पार्ट अपना, पीएसआई 2019 का, इट इज नॉट ऑफ दैट टेक्सटाइल। एक्सपेंशन में भी हम लोग को मिलता है, उसके क्राइटेरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन 25% ऑफ योर ग्रॉस एफसीआई लास्ट ईयर का, कैपेसिटी आपका एटलीस्ट 25% इंक्रीज होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 10% इंक्रीज होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर। अब इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी है? माइक्रो और स्मॉल के लिए डीआईसीज है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर हम लोग बॉम्बे का बात करेंगे तो अगेन चेंबूर में है, थाने के लिए आपका वागले के अंदर है, पालघर के लिए यू हैव डीआईसी इन पालघर। और अगर मीडियम एंटरप्राइज का सब्सिडी है देन इट गोज टू जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। जॉइंट डायरेक्टर का उन्होंने 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक ऑफिस बनाया हुआ है। सो अगेन इन फॉर कोंकण एरिया इट इज इन थाने, फॉर पालघर और उसके आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स है, इट इज इन पालघर एरिया। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग पीएसआई लैंड शुड बी एनए, जो हम लोग ने डिस्कशन कर दिया। बिल्डिंग प्लान मस्ट बी टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, एमपीसीबी कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, एंड प्रोजेक्ट हैज टू बी अप्रेज्ड बाय बैंक सीकॉम। सो सर आपका जो क्वेश्चन था, उन्होंने आप इसको कंपल्सरी नहीं किया है बैंक लोन, लेकिन अगर आपको बास्केट के अंदर सपोज जीएसटी से आपको फुलफिल नहीं हो पा रहा है, आपको इंटरेस्ट से उसको फुलफिल करना है बास्केट को 1 करोड़ का, देन यू हैव टू टेक द टर्म लोन, देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट। और दूसरा, दे वांट द प्रोजेक्ट must be appraised by bank or CCOM। तो या तो आप टर्म लोन लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बैंक से अप्रेज हो जाएगा, यू कैन गेट गिव दैट अप्रेजल नोट टू द सब्सिडी एंड दे विल कंसीडर। पर अगर आपने टर्म लोन नहीं लिया है देन यू हैव टू गेट इट अप्रेज्ड बाय CCOM, व्हिच इज स्लाइटली मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप किसी से फंडिंग नहीं लेते दे वुड नॉट लाइक टू अप्रेज। सो वी हैव आल्सो फेल्ट इन आवर केसेस, हमारे क्लाइंट्स के केसेस में नॉर्मली उस केस में कोई जाता नहीं है। सो पीपल वी एडवाइज टू द क्लाइंट्स दैट यू शुड गो फॉर द टर्म लोन to get the incentives benefit। हाँ, ये प्रोसेस है। आई थिंक हम लोग ने अपने डिस्कशन में काफी कुछ तो कवर कर लिया है, बट आई हैव टू स्लाइटली थोड़ा सा हम लोग पीएलआई पे भी एक बार 10 मिनट आई वुड लाइक टू। अच्छा, एक ये स्लाइड में डिस्कस है रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस फॉर दीस काइंड ऑफ सब्सिडीज। श्योर श्योर सर। एडवाइजरी सर्विसेज ऑफ क्लाइंट फॉर एक्सप्लेनिंग देम सब्सिडीज। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं। अ क्लाइंट केम टू अस, 50 करोड़ का उनका एक टारगेट था इन्वेस्टमेंट का इन ईवी रिलेटेड। सो ही गेव मी, बोले कि मैं बाकी सब फैक्टर्स को आई विल कंसीडर कि मेरा रॉ मटेरियल कहाँ पे है, फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे है, लेबर पावर दैट आई एनालाइज, बट आई वांट फ्रॉम सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू। ही आइडेंटिफाइड सम 7 स्टेट्स, ही गेव अस 7 स्टेट्स एंड आस्क्ड कहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एंड टू माय सरप्राइज आल्सो, क्योंकि आई वर्क फॉर इधर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज और महाराष्ट्र में बाकी के स्टेट्स का नहीं करता हूं, बट टू डू दैट असाइनमेंट आई एनालाइज द पॉलिसी ऑफ अदर स्टेट्स आल्सो, जिसमें गुजरात भी था, आपका तेलंगाना भी था, तमिलनाडु भी था, दे हैड गिवन। एंड टू माय सरप्राइज आल्सो महाराष्ट्र में उसको मैक्सिमम सब्सिडी मिला, जो मैंने गुजरात में बताया इट इज 1/5, एंड इन अदर स्टेट्स आल्सो इट वाज लेसर। सो इन एनालिसिस ऑफ दोस 7 states also, Maharashtra was the state which was giving highest subsidy for any capital investment for MSME. So I can say Maharashtra is really, in terms of incentives, they are giving very good incentives. वहाँ पे भी, and he paid us the professional fees to do that advisory work also. So I'm saying खाली execution के लिए पैसा नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ clients को advise करते हैं, there also we can create value, for the client, and that helped him in taking the decision. उसको ultimately decision was him, उसको कहाँ पे जाना है, but that our report helped him in understanding कि मेरे को सब्सिडी कहाँ पे बेटर मिल सकता है।
देन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, आप बैंक है उनके लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, सब्सिडी में भी लगता है, सो यू नो देयर इट क्रिएट्स अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर अस. फाइलिंग ऑफ वेरियस एप्लीकेशन फॉर विद सब्सिडी डिपार्टमेंट, फाइलिंग ऑफ ईयरली क्लेम्स, जो मैंने आपको बताया 7 से 10 साल में आपको मिलता है, एवरी ईयर आपको क्लेम भी देना पड़ता है और उसमें सीए के सर्टिफिकेट्स भी जाते हैं. सो टू प्रिपेयर द क्लेम आल्सो एमएसएमई क्लाइंट नीड योर सर्विसेज एंड यू नो टू your engagement. Then liaising with the government department, providing various certificates during filing of yearly claims. मैं अभी और भी स्टेट गवर्नमेंट उनको स्किप कर देता हूँ, हम लोग थोड़ा सा पीएलआई पे आ जाते हैं 5 मिनट क्विकली, बट आई वुड रिक्वेस्ट महेश जी, अगर हम लोग पीएलआई पे एक नेक्स्ट कभी इफ यू परमिट हम लोग एक डिटेल सेशन रखेंगे. यस यस, मैं पीएलआई पे आ जाता हूँ, कम डायरेक्टली ऑन पीएलआई. Yes, I think I've shared with the convener sir, तो आप एक बार you can request him certainly. सर अभी तक आपने कितनी सब्सिडी दी है? कितनी सब्सिडी? ये डेटा भी कोई नहीं है। सर काम तो हो रहा है और 10 साल से वी आर दाल रोटी तो चल रही है. नहीं, बट वी आर डूइंग गुड वर्क इन दिस. जैसे गवर्नमेंट बोलता है 1 लाख बहुत जगह जेल गया है. हम लोग पीएलआई पे आ जाते, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव. थोड़ा सा मैं इसका एक बैकग्राउंड देता हूँ. पीएलआई है ना 2020 में, इनफैक्ट कोविड स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम पे, मार्च में दे केम अप विद 3 पीएलआईज ऑलरेडी आज. अच्छा, इसका फुल फॉर्म इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव. जो अपना मेक इन इंडिया आया था उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट वांटेड कि हम लोग को कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा लोगों को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लेके आने के लिए, देन ओनली दे विल डू इट. सो this idea was conceptualized in 2016-17 से उनका उसके ऊपर प्लानिंग चल रहा था. In 2020 just before COVID they launched 3 PLIs also. मतलब काफी लोगों को इसका पूरा हाईलाइट ड्यूरिंग कोविड आया था जब उन्होंने 14 स्कीम्स लॉन्च किया था, बट बिफोर कोविड आल्सो दे लॉन्च्ड 3 स्कीम एंड देयर आइडिया वाज आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कीजिए, नया कैपेसिटी लगाइए, नया टर्नओवर कीजिए, जो इंक्रीमेंटल टर्नओवर रहेगा उसके ऊपर वी विल गिव यू डायरेक्ट इंसेंटिव ऑन द सेल्स, इंक्रीमेंटल सेल्स व्हाटएवर यू आर डूइंग. सो अभी तक हम लोग ने पीएसआई में देखा वो आपका खाली इन्वेस्टमेंट बेसिस पे है. यहाँ पे वो लोग आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट दे गिव यू सब्सिडी ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स व्हाटएवर यू आर डूइंग. लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपका एग्जिस्टिंग सेल था, बेस ईयर सेल्स था 100 करोड़ रुपए का, बोलते हम लोग आपको 100 करोड़ भी नहीं देंगे, आपने नया केपेक्स किया, सपोज 50 करोड़ का केपेक्स किया, उसके ऊपर आपने एडिशनल अगर 150 करोड़ का सेल्स किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 प्लस 150, तो जो 150 रहेगा उस पे दे विल गिव यू इंसेंटिव ऑफ मे बी हर जैसे मैंने आपको बताया 14 पीएलआईज है, हर पीएलआई सेपरेट मिनिस्ट्री हैंडल, इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वो टेक्सटाइल पीएलआई हैंडल करता है, स्टील वाला पीएलआई हैंडल करता है. सबके रेट्स उनके हिसाब से डिफरेंट है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. हम लोग ने रिसेंटली एक लैपटॉप एंड सर्वर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अवर क्लाइंट गॉट द बेनिफिट ऑफ दिस पीएलआई. सो ऑन द एडिशनल सेल्स दे गिव यू डायरेक्टली सेल्स के ऊपर 4%, 5% व्हाटएवर दे हैव डिफाइंड. सो जस्ट सी द मैजिक. सेल्स के ऊपर पूरा दे रहा है तो अपना सीधा जाके नीचे नेट प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर वो ऐड होता है. 4 से 5% आपका नेट प्रॉफिट रेशियो था. टैक्स को हम लोग एक बार को रख दें, कंसीडर टैक्स आल्सो, 5% का आपको पीएलआई मिल गया, तो दैट हैज बीन एडेड डायरेक्टली टू योर पीबीटी. So that is how they are giving. और मैं आपको एक रफली जो इनके कैलकुलेशंस रहते हैं, they give over a period of again 4 से 5 साल के पीरियड में देते हैं, every year जो आप इंक्रीमेंटल सेल्स करते हो. So my client proposed in this PLI of laptop and server manufacturing, he has committed an investment in next 5 years. अच्छा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको कुछ स्कीम्स के अंदर एक साथ करना है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट पीरियड भी दिया है. इन सम स्कीम्स यू कैन डू ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years also. जो भी आप इंक्रीमेंटल सेल्स करोगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा. So he has committed recently
रिसेंटली 3 महीने पहले ही उनको हम लोग ने फाइल किया था। सो इसका भी विंडो आता है, इट इज नॉट ओपन फॉर द एंटायर ईयर, उस विंडो के टाइम पे 2 या 3 महीने का विंडो होता है, इन ड्यूरिंग दैट पीरियड यू हैव टू अप्लाई इट। और दे हैव कमिटेड एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑफ अराउंड 80 करोड़ रुपीस, और जो हम लोग ने उनका प्रोजेक्टेड सेल्स जो इंक्रीमेंटल होने वाला है उसके ऊपर हम लोग ने सब्सिडी वर्कआउट किया, विच इज कमिंग टू 110 करोड़ रुपीस। 85 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे उनको 110 करोड़ का सब्सिडी ओवर अ पीरियड, सो योर एंटायर कैपेक्स इज गेटिंग फ्रीड इफ he do that production whatever he has proposed in projections by that incremental I saw my existing one and I completed everything to this new facility that we have done for the purpose of taking the realized benefit. So there are lot of checks and balances बहुत strong है, और let me tell you ये जो एक specific ministry है, everything is online, आपको किसी को जाके मिलने का जरूरत नहीं है, entire process is online, आप फाइल कीजिए। and let me tell you इसमें directly ministry भी involved नहीं है, IFCI हम लोग ने काफी लोगों ने सुना होगा। so in Delhi they have given this assignment to IFCI, सब PLIs के लिए they have created a body in between, IFCI को आप सारे document, it is to the department itself but they have created a body in between, वो पूरा एनालाइज करते हैं, सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम ओनली। सो इट इज अ वेरी क्लीन एज पर आवर एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। एंड द थिंग इज, जो आपका क्वेश्चन था, कुछ हैंकी पैंकी हम लोग कर नहीं सकते हैं, दे हैव क्रिएटेड चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ एवरीथिंग। आपका एसेट्स के ऊपर भी कौन सा आपने यूटिलाइज किया है टू क्रिएट, वेदर यू यूटिलाइज द न्यू एसेट्स और नॉट, दे हैव केप्ट चेक्स एंड बैलेंसेस, सो दोस थिंग्स कैन नॉट बी। So how do you compute the incremental turnover in that case? Because genuinely client is saying I want to focus on these parts rather than my existing like my facility which is already there. For example, steel. So one of our client got subsidy in the steel. So they had to do the investment of 500 CR over the period of say 5 to 7 years something. So existing was already there, but they have formed a new company. The group has formed a new company, and in that company this particular thing will be taken care of. So existing company से मेरा स्किल का टर्नओवर कम हो गया, मैं मेरे सारे जो डेटर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे डाइवर्ट कर दूं। नहीं, बट कैपेसिटी आप उसका भी आपने जिस टाइप के प्रोजेक्शंस किया हो, यू मस्ट हैव गिवन सम प्रोजेक्शंस कि मेरा इतना कैपेसिटी यूटिलाइज होगा। एग्जांपल लीजिए, 100 टन आपका पर ईयर होने वाला था नई वाली से, और आपका पुरानी वाली से 50 टन चल रहा था। आप 100 टन का अगर इंस्टॉल कैपेसिटी, यू कैन नॉट टेक आउट द प्रोडक्शन ऑफ 120 और 130 टन। सो दे हैव केप्ट चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। So we have also practically seen मेरे जो 50 करोड़ का मेरा एग्जिस्टिंग था, एंड मैंने बोला इंक्रीमेंटल में न्यू फैसिलिटी पे 100 करोड़ का भी 100 टन का मैं कैपेसिटी करूंगी यूटिलाइज, एंड आई विल बी जनरेटिंग न्यू एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम दिस। आई एम सेइंग दिस 50 सीआर के जो डेटास है, जो मेरे एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल है, सब कुछ है, वो मैं वहां पे 0 टन हो, और मेरा सारा का सारा ये 100 को मीट करने में लगा दूं। इज इट पॉसिबल? हाँ, सो दे वुड कंसीडर, आपने जो नया यूनिट में इन्वेस्टमेंट किया है उससे अगर आप टर्नओवर जनरेट करते हो, देन दे विल कंसीडर दिस एज एन इंक्रीमेंटल। सो मैं थोड़ा सा क्विकली विल टेक 2020 में दे हैव एलोकेटेड 1.97 लाख करोड़ रुपीस फॉर पीएलआई। 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने पीएलआई के लिए एलोकेट किया है। 14 में अगर मैं इसको प्रोपोर्शनली भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का आपको एक एक पीएलआई के अंदर दे आर गिविंग बेनिफिट। Initially active for 3 segments, active pharma, electrical components and medical devices. 2020 में they made it to the 14 sectors. इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको मेक इन इंडिया करना है। एक इसमें डोमेस्टिक वैल्यूएडिशन, मैं आपको थोड़ा सा टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूंगा। दे हैव केप्ट है टर्म डीवीए। डोमेस्टिक वैल्यूएडिशन में क्या बोलते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहे हो पर उसमें रॉ मटेरियल आपने कोई यूज किया है दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया, तो उसको आपको टर्नओवर से रिड्यूस करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने लैपटॉप बनाया, लैपटॉप में मैंने 3 पार्ट्स है वो यूएस से इंपोर्ट करके लगाए, बाकी के 6 पार्ट में इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। इन दैट केस दे विल रिड्यूस व्हाटएवर द पार्ट यू हैव यूज्ड व्हिच वाज मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया। सो दे वांटेड एवरीथिंग शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। दैट इज हाउ यू विल कंप्लाई विद द मेक इन इंडिया टर्म। अदरवाइज तो लोग क्या करेंगे, असेंबली यूनिट इंडिया में डालेंगे, पूरा इंपोर्ट करेंगे और उसको यहाँ पे असेंबल करके सेल कर देंगे, एंड दे विल ट्राई टू टेक द बेनिफिट। बट इन पीएलआई यू हैव टू डू make in India. As per your case, suppose you are importing 100% component and doing assembling, you are getting some PLI benefit or not? इनफैक्ट 100% में तो मिलेगा ही नहीं, आपने 50% इंपोर्ट भी कर रहे हैं
तो उस केस में वो आपको 50% जो भी आपने इंपोर्ट किया है उसको इंक्रीमेंटल सेल्स में से लेस करवा देंगे। पर सेल्स में आपका कुछ तो प्रॉफिट कंपोनेंट होता है, कुछ तो वैल्यू एडिशन होता ही है, मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स भी होता ही है। तो आप पूरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट रिड्यूस कर दीजिए, मेरी 100 करोड़ की सेल्स है, 90 करोड़ की 10 करोड़ पे तो So that is how they are import में आपने जो भी रॉ मटेरियल इंपोर्टेड यूज किया हाँ, so they are getting benefit। आपने अगर उसमें से 50% रॉ मटेरियल इंपोर्टेड यूज किया है, so इंक्रीमेंटल सेल्स अगर आपने 100 करोड़ का किया, उसमें से 50 करोड़ का इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लेस कर देंगे, they will give you benefit on the remaining। एग्जांपल 100% रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, खाली फिक्स हाँ, नहीं, in that case इंपोर्ट है 100 की सेल में तो no, that is not eligible, वो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिर। 14 सेक्टर्स एक बार हम लोग क्विकली, एपीआई, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो हम लोग ने डिस्कस किया, प्रैक्टिकल लैपटॉप, टैबलेट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, फूड प्रोडक्ट्स, white goods, AC, LEDs, high efficiency, solar PV modules, automobiles, auto components, ACC, advanced chemistry cells, textile, especially steel, and recently they have added this drone and drone components also। मैं खाली एक सक्सेस स्टोरी आपको पीएलआई का डिस्कशन करता हूं। आई थिंक हम लोग सब अवेयर भी होंगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए 2017-18 के अंदर वी वर द नेट इंपोर्टर ऑफ यूएसडी 3.6 बिलियन मोबाइल्स, और हमारा एक्सपोर्ट था 324 मिलियन का खाली। और आज के टाइम में देखिए सैमसंग से लेके एप्पल से लेके दे ऑल आर सेटिंग अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, एंड बाय 2022-23 our import has reduced from 3.6 billion to 1.6 billion, and our export has been increased from 334 million USD to 9.4 billion USD। मतलब ये तो सब लोगों को अपन को पता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हैज बिकम द हब एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग आल्सो। मैं आपको पीएलआई का भी अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो सैमसंग हैज गॉट around 20-25 days back they have started manufacturing under PLI only, they have applied for, और उनको 2022-23 का 550 करोड़ का इंसेंटिव they have received 20 days back under PLI scheme, and they are gonna receive this incentive। This was the first year which they got it, and they are gonna receive it for next 5 years, और वो भी बढ़ता रहेगा because incremental turnover आपको increase करके बताना है। सो सी अगर उसको 550 करोड़ 5 साल तक भी मिलता है, तो 2,500-2,500 करोड़ रुपए अगर हम लोग इस सेम पे ही मानते हैं, तो दे विल गेट 2,500 करोड़ रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। दैट इज हाउ दे आर बूस्टिंग। मोबाइल एक एग्जांपल है, ऐसा ही उन्होंने अभी लैपटॉप सर्वर मैन्युफैक्चरिंग में भी दे हैव स्टार्टेड रेगुलेटिंग कि आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, एंड दे आर गिविंग बेनिफिट्स। I think we have exceeded the time पर PLI में भी again एक स्कीम एक लेक्चर I think presentation will share with you। अच्छा 2 मिनट अगर हमने शायद क्वेश्चंस कम लिए थे बीच में, तो अगर अभी आपके कुछ क्वेश्चंस होता है रियली Yeah, just. If GST is not there, so micro enterprises, concerns which are registered under GST, not required to register under GST. If they obtain prime registration, कैसे obtain? the registration, the assessing without GST registration. Yes, Udal they can take. Because it is a pen based. Because I think it is a mandatory field, putting GST number. No, it is not mandatory. It is not mandatory. So 20 लाख के नीचे का अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी देना कंपल्सरी नहीं है, और अगर 20 लाख के माइक्रो है तो दे कैन टेक। Right. Okay, that's fine. I think last question. One more question. So, friends. So, friends, our Prime Minister Narendra Modi ji has given an alternative definition of MSME. It means maximum support to micro and small and medium enterprises. So, thank you so much,
CA Sachin Tulsian for taking us through the various schemes for MSME, the steps required to take benefits of the same, intricacies and points to consider, etc. There are numerous professional opportunities which we can definitely take benefits of, and he shared detailed definitions, tables and practical examples which makes the entire concept very lucid and simple to understand. Thanks to our coordinator CMI Deriaji for his efforts in the smooth and conduct for today's seminar. And also to all the members for being a great and actively participative audience. On behalf of JB Nagar CP Study Circle, I request you to please carry a loud round of applause. I request you to please remain seated for the lucky draw.